giving us another opportunity to come in your presence. And while we are here, Lord, in this youth forum, my prayer is that you give us grace to approach you in all the deepness of sincerity. And the subject of the rapture, which we have been seeing for quite many Tuesdays, Lord, make it alive to our hearts, that we walk in it and one day be taken up out of this earth into the unseen dimension. We believe that you are hearing our prayer. Bless the people who have come to attend the meeting. Heal the sick and give the needs of the needy according to your perfect will. Forgive us our sins and trespasses and unbelief. Wash us with your precious blood and fill us with our Holy Spirit. Under your blood we come. In the name of Jesus Christ, our Lord, we ask this prayer. Amen. One thing have I desired of the Lord. One thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, to inquire in his temple, the temple of the Lord, to behold the beauty of the Lord, to inquire in his temple, the temple of the Lord. One thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, to inquire in his temple, the temple of the Lord, to behold the beauty of the Lord, to inquire in his temple, the temple of the Lord, to behold the beauty of the Lord, to inquire in his temple, the temple of the Lord, just to behold the beauty of the Lord, to inquire in his temple, the temple of the Lord. Oh, hallelujah. We thank you and we praise your holy name, Lord, for giving us another time and opportunity to come in your presence and to worship you. Worthy is the Lamb to receive all glory and honor and power and mercies and riches and praise. Oh, we praise you, Lord. We worship you. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Let's pick up our Bibles. आइए अपनी बाइबलों को खोल लें. Let's turn to Acts chapter 1. ये तो काम उसका पहला अध्याय. And we are going to read from verse 8 और हम उसकी 8वीं आयत से पढ़ेंगे till verse 12. 12वीं आयत तक. But ye shall receive power
After that, the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. When he had spoken these things, while they beheld, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. And while they looked steadfastly toward heaven as he went up, behold, two men stood by them in white apparel, which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? This same Jesus which is taken up from you into heaven shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. Then returned they unto Jerusalem from the mount called Olivet, which is from Jerusalem a Sabbath day's journey. Amen. Sweet Jesus, we just read some scripture. They're already anointed. You anoint them to our hearts, is my prayer. Open thy word to us. In the name of Jesus Christ, we ask this prayer. Amen. You all can be seated. आप लोग सब बैठ सकते हैं. It's good to be back in the house of the Lord बहुत ही भला है कि हम वापस प्रभु के भवन में हैं and to meditate on his word. और हम उसके वचन पे मनन कर सकें. Now continuing on with our subject of the rapture, और रैप्चर वाले विषय में आगे बढ़ते हुए we are now going to turn from Elijah to another rapture. अब हम एलिया से हट करके एक और रैप्चर की तरफ मुड़ेंगे. Just to give you a brief recap. आपको एक छोटा रिकैपिचुलेशन देने के लिए. By the way, God bless you, brother. खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे भाई. His name is Neville. भाई नेवल Timothy from he's from Andhra and he's in Madurai, nahi? No, I'm sorry. Tirupati. That's right. तिरुपति में भाई. खुदा ने बड़ी बरकत दे भाई. God really bless you, brother. खुदा ने बड़ी बरकत दे भाई. Nice to have you amongst us. God bless you. Please sit बहुत down. ही अच्छा है कि आप हमारे बीच में हैं. Amen. I just saw him. उनको देखा. So God's name be really praised. सो खुदा का नाम वास्तविक रूप में मुबारक हो. So we have been seeing 6 raptures. हम 6 रैप्चर्स को देख रहे हैं. We have seen the rapture of Enoch. हमने हनोक का रैप्चर देखा. Then we saw the rapture of Elijah. फिर हमने एलिया के रैप्चर को देखा. And we saw that in the rapture of Elijah there were 4 stations. और एलिया के जो रैप्चर में हमने उसमें देखे 4 स्थान है जहाँ रुकाव के, जहाँ ठहराव है. First is Gilgal, पहला गिलगाल है. then Bethel, फिर बेतेल, then Jericho, and then Jordan. फिर यरीहो, फिर यरदन. And we also saw that these are the same 4 stations in the life of every believer. और हमने देखा कि यही 4 स्टेशंस हैं हर एक विश्वासी के जीवन में. For Gilgal means justification. गिलगाल का मतलब है धर्मी ठहरना. Bethel is sanctification. बेतेल पवित्रीकरण है. And then Jericho is the baptism of Holy Ghost. और यरीहो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है. And Jordan is dying to self. और यरदन स्वयं का मृत्यु है. To manifest the Son of Man. ताकि मनुष्य के पुत्र को प्रकट रूप में लेके आया जा सके. So we saw these things. तो हमने इन चीजों को देखा. And now we move on from the rapture of Elijah to another rapture. और हम एलिया के रैप्चर से एक और रैप्चर की ओर बढ़ते हैं. Which is our Lord Jesus. जो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का है. First of all, I'll read from the message of the rapture. पहले तो मैं रैप्चर वाले संदेश आपके सामने पढ़ना चाहूंगा. How he talks about the raptures. कैसे वो रैप्चर्स के विषय में बात कर रहे हैं नबी. I am reading paragraph 167. मैं पढ़ रहा हूँ 167 पैराग्राफ से. Since this is a message study meeting. क्योंकि ये मैसेज स्टडी संदेश की स्टडी वाली सभा है. So I believe every one of you has got your copy of the message with you. तो मैं विश्वास करता हूँ आप में से हर एक के पास ये किताब की कॉपी होगी संदेश की. So I'm reading it from here. मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ. Now notice. आप ध्यान दीजिए. We have had 3 witnesses. हमारे पास 3 गवाह थे. 3 is a witness. 3 गवाह को दर्शाता है. Now we have already had 3 raptures in the Old Testament. अब पुराने आयत में हमारे पास पहले से 3 रैप्चर थे. Did you know that? क्या आप इसको जानते थे? As a witness. एक गवाह के तौर पे. You see, whenever there is a witness, आप देखिए जब कभी गवाही होती है, then there has to be a testimony. तो जरूरी है कि उसके पीछे जहाँ कहीं एक गवाह होता है उसके पीछे गवाही होती है. My question is, मेरा सवाल ये है, what are they witnessing? वो किस चीज की गवाही दे रहे हैं? What did the rapture of Enoch witness? हनोक के रैप्चर ने किस चीज की गवाही दी? What did the rapture of Elijah witness? एलिया के रैप्चर ने किस चीज की गवाही दी?
And then he'll say the third one as our Lord Jesus. और वो तीसरा कहेंगे प्रभु यीशु मसीह के रूप में। 3 raptures in the Old Testament. पुराने ऐदनामे में 3 रैप्चर्स। Did you know that? क्या आप इस बात को जानते थे? As a witness. एक गवाह के तौर पे। Now watch. अब ध्यान दीजिए। Enoch was one. हनोक पहला था। Elijah was the other one. और एलिया दूसरा था। And Jesus was the other one. और यीशु मसीह तीसरा था। 3 individuals. 3 व्यक्ति। 3 witnesses. 3 गवाह। Witnessing something. किसी चीज की गवाही देते हुए। What? क्या? What are they witnessing? किस चीज की गवाही दे रहे हैं? Now, this is something you and I need to think about. अब ये कुछ ऐसी चीज है जिसको आपको और मुझे सोचना जरूरी है। Enoch became a witness. हनोक एक गवाह बना। Elijah became a witness. एलिया एक गवाह बना। In the similar fashion, our Lord Jesus उसी रीति से हमारे प्रभु यीशु मसीह became a witness of something. किसी चीज के वो गवाह बने। Witness of what? किस चीज के गवाह? Witness of the rapture now. जो अब रैप्चर होने वाला है उसके गवाह। To tell the whole world. ताकि पूरे संसार को बता दिया जाए। Everybody doesn't have to die. हर एक को मरने की जरूरत नहीं है। Of course, our Lord Jesus died. सही बात तो ये हमारे प्रभु यीशु मसीह मरे। But he didn't have to die actually. लेकिन वास्तविक रूप में उन्हें मरना अवश्य नहीं था। But he died for our sins. लेकिन वो हमारे गुनाहों के हेतु मरे। But what does it witness now? लेकिन अब वो किस चीज की गवाही देता है? That there will be a rapture today. कि आज एक रैप्चर होगा। And there will be saints who have died and rose again. और कुछ संत थे जो कि मर गए लेकिन अब जिंदा हो जाएंगे। They will be raptured. उनका रैप्चर होगा। And there will be some living ones. और कुछ जीवते होंगे। Who will be raptured too. जिनका भी रैप्चर हो जाएगा। Like Enoch, like Elijah. हनोक की तरह, एलिया की तरह। They don't have to taste death. उन्हें मृत्यु का स्वाद नहीं चखना पड़ेगा। Are you listening? क्या सुन रहे हैं आप? They became a witness of that rapture. वो उस रैप्चर के गवाह बन गए। Now if you already have 3 witnesses in the Old Testament. अगर पुराने ऐदनामे में पहले से 3 गवाह हैं। And they are witnessing something. और वो किसी चीज की गवाही दे रहे हैं। And by the way, you can never be a witness of something you have not seen. और आप किसी चीज के गवाह बन नहीं सकते अगर आपने उस चीज को देखा ना हो। Elijah's rapture is a witness. एलिया का रैप्चर एक गवाही है। That means Enoch saw a rapture. इसका अर्थ ये है हनोक ने एक रैप्चर देखा। If Elijah is a witness, अगर एलिया एक गवाह है, then Elijah also saw something. तो जरूरी है कि एलिया ने भी कुछ देखा है। And he was having rapturing faith. और उसके पास उड़ने वाला विश्वास है। The reason he had rapturing faith is the same way Enoch had the rapturing faith. क्यों एलिया के पास रैप्चरिंग उड़ने वाला विश्वास है? क्योंकि हनोक के पास भी उड़ने वाला विश्वास था। And Elijah knew, और एलिया जानता था, like me, मेरे मानंद, when the spirit of Elijah will come on this earth, जब एलिया की आत्मा इस पृथ्वी के ऊपर आएगी, there will be a group who doesn't have to die. एक झुंड होगा जिसे मरना जरूरी नहीं होगा। And I am going to bear a witness for them. और उनके लिए मैं गवाह बनूंगा। I am the first time coming on this earth. पहली बार मैं पृथ्वी पर आ रहा हूंगा। My name is Elijah. मेरा नाम एलिया है। And I don't have to taste death. और मेरे मृत्यु का स्वाद नहीं चखना पड़ेगा। I will be taken up alive. मैं जिंदा उठा लिया जाऊंगा। My going up alive is a witness. मेरा जिंदा उठाया जाना एक गवाही होगी। That in that day, कि उस दिन में, and that is this day, और वो दिन आज का दिन है, there will be a people एक झुंड होगा लोगों का who doesn't have to taste death. जिन्हें मृत्यु का स्वाद नहीं चखना पड़ेगा। Then how definite is this rapture? तो ये रैप्चर कितना पक्का है? फिर How sure is this rapture? फिर ये रैप्चर कितना ज्यादा पक्का है? It is so sure, brother, इतना पक्का है भाई that you can't even think about it. कि आप इसके विषय में सोच भी नहीं सकते। One of these mornings, it's going to happen. इन्हीं की सुबह में ये होने वाला है। There will be some here यहाँ पर कुछ होंगे who will not be here. जो यहाँ होंगे नहीं। They don't have to attend the meetings anymore. उन्हें सभाओं में जाना जरूरी नहीं होगा उसके बाद, Because they'll become a part of one great meeting. क्योंकि वो एक बड़ी महासभा का हिस्सा हो जाएंगे। Going in the rapture. रैप्चर में चले जाएंगे। Because they have seen now their witnesses. क्योंकि उन्होंने अपने गवाहों को देख लिया। Imagine Enoch standing here. इस बात की कल्पना कीजिए, यहाँ पर हनोक खड़ा है, Elijah standing here. एलिया यहाँ खड़ा है, And Jesus is standing in between. और यीशु मसीह बीच में खड़े हैं, And looking at you. और आपकी ओर देख रहे हैं, And telling you. और आपसे कह रहे हैं, Our rapture is your witness. हमारा जो रैप्चर है वो तुम्हारे लिए गवाही है। We bear a witness for you. हम तुम्हारे लिए गवाही को रखते हैं।
that you won't stay on this earth. कि तुम इस पृथ्वी पर बने नहीं रहोगे, And what all happened to us और जो कुछ हमारे साथ घटेगा will happen to you. वो तुम्हारे साथ घटेगा. My, हाय, हालेलुया. try to catch that thought. इस विचार को पकड़ने की कोशिश करिए. Sit down, please. कृपया बैठ जाइए. Enoch was one, हनोक पहला था, Elijah was the other one, एलिया दूसरा था, and Jesus was the other one. और यीशु मसीह तीसरा था. Notice, I've already explained that. अब ध्यान दीजिए, मैं इसको पहले समझा दिया है. They placed the rapture of Jesus in the Old Testament. उन्होंने यीशु मसीह के रैप्चर को स्थान दिया पुराने ऐहदनामे में. Why? क्यों? He came to fulfill the law. क्योंकि वो व्यवस्था को पूरा करने आए थे, And law ended with him. और व्यवस्था उनके द्वारा समाप्त हुई. What was the law? व्यवस्था क्या थी? Now I'm going to turn my track. अब मैं अपनी दिशा को मोड़ूंगा. That law was a book that came on a mountain. वो व्यवस्था एक पुस्तक थी जो कि पहाड़ पे आई थी. When an Exodus prophet went there, जब एक निकासी का नबी वहां पे गया उस पहाड़ पे, inside the cloud, बादल के अंदर, that book had now become flesh. अब वो पुस्तक देहधारी हो चुकी थी. All the commandments were walking on 2 feet. सारी की सारी जो आज्ञा थी दो पांव पे चल रहे थे. And now this man got raptured. और अब इस मनुष्य का रैप्चर हो गया. Think of that. इसके विषय में सोचिए. In the similar fashion, उसी रीति से there is a book today आज एक पुस्तक है which was brought from a mountain. जो कि एक पहाड़ से लाई गई, And there will be a people on this earth और पृथ्वी में कुछ लोग होंगे who will be the manifestation of that book. जो कि उस पुस्तक का प्रकटीकरण होंगे. Then how can they stand on this earth? तो वो इस पृथ्वी पर कैसे खड़े रह पाएंगे? How can they live on this earth? वो इस पृथ्वी पर कैसे जिएंगे? They have to go home उन्हें घर जाना अवश्य है, because they are the word made flesh. क्योंकि वो वचन देहधारी रूप में है. Which word? कौन सा वचन? The word that came on the mountain. वो वचन जो कि पहाड़ के ऊपर आया. On the mountain, he was shown the pattern of a temple, पहाड़ पे उसे नमूना दिखाया गया एक मंदिर का, a tabernacle that was to be made. एक आराधनालय, एक 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 पवित्र एक भवन जिसका कि निर्माण स्वर्ग में दिखाया गया था उसको. A pattern, I said, was एक नमूना shown. दिखाया गया था उसको स्वर्ग में. A tabernacle made of shittim wood, एक ऐसा भवन जो कि शित्तीम की लकड़ी से बनाया गया था, which was overlaid with gold. जिसके ऊपर सोना मढ़ा गया था. And those planks were brought together. और वो फट्टे एक साथ लाए गए, And when they were tied together, और जब वो एक साथ बांधे गए, they were enclosing a mystery. वो एक भेद को अपने अंदर रख रहे थे. Inside them was an ark. उसके अंदर एक संदूक था वाचा का. Those planks were enclosing a place, ओ माय, वो जो फट्टे थे वो एक स्थान को घेरे में ले रहे थे, which was the holy and the holiest of holies. जो कि पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान था. And behind the planks और फट्टों के पीछे was the ark of the covenant, वाचा का संदूक था. was the mercy seat, वहां पे दया का सिंहासन था. was the cherubims, वहां पे करूब थे. was the throne of God. खुदा का सिंहासन था. That was the vision of God. ये था खुदा का दर्शन. A wood एक लकड़ी that is humanity, जो कि इंसानियत को दर्शाती है, overlaid with gold. जिसके ऊपर सोना मढ़ा गया. Baptism of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है जो, But behind the temple लेकिन उस मंदिर के पीछे is the word, वचन है. is the ark, वहां पे वाचा का संदूक है, is the throne of God, खुदा का सिंहासन is है, his Shekinah glory. वहां पे शकीना महिमा है. Can you say amen? क्या आमीन कह सकते हैं आप? Is the election of God, वहां पे खुदा का चुनाव है. is the selection of God, वहां पे खुदावन का चुनाव है. is the word of God, वहां पे खुदा का वचन है. is the hidden manna. वहां पे छुपा हुआ मन्ना है. Everything is lying behind the planks. सब कुछ कहां पे है? उस फट्टों के पीछे. And the plan which God showed और जो योजना खुदा ने दिखाई was of a movable temple, वो था एक चलते फिरते मंदिर का. a temple which is not permanent in one place. एक ऐसा मंदिर जो कि एक स्थान एक जगह पे स्थायी नहीं हो सकता. The planks could be hitched off जो फट्टे वो खाड़े जा सकते थे and go to the next place. और अगले स्थान पे जा सकते थे. Meaning this, इस बात को दिखाते हुए that this is a temporary place. कि ये जो है ये टेम्पररी स्थान है. This is not the permanent place of these planks. ये हमेशा तक रहने वाला स्थान नहीं है. इन One of फट्टों these का days God is going to disassemble them एक इन्हीं की दिनों में खुदावन इनको उठाएगा और अलग करेगा and gather his planks और अपने फट्टों को इकट्ठा करेगा and take them to heaven, और उनको स्वर्ग ले जाएगा. because the pattern came from heaven, क्योंकि जो नमूना वो स्वर्ग से आया became manifested in planks, और फट्टों में देहधारी हो गया and they are going back to और heaven. वापस स्वर्ग में जाएंगे. My question is, मेरा सवाल ये है, where did the planks go?
फट्टे कहां चले गए? Wherever Moses went, जहां कहीं मूसा गया, the planks went with him. फट्टे उसके साथ साथ गए. Wherever Joshua went, जहां कहीं यहोशू गया, the planks went with them. फट्टे उसके साथ गए. The planks started their journey in Mount Sinai, सीने पर्वत में फट्टों ने अपनी यात्रा चालू करी, but it ended in the land of Canaan. लेकिन कनान देश में उनकी यात्रा समाप्त हुई. Hallelujah. हालेलुया. Where the camp was placed in Shiloh. जहां पे वो कैंप जो था वो शीलो में रखा गया. So the planks found their rest in Shiloh. सो जो फट्टे थे उन्होंने अपना आराम का स्थान पाया शीलो में. In the same way, उसी रीति से the bride will find rest in heaven. जो दुल्हन है उसको आराम मिलेगा स्वर्ग में. The land where we are going to, वो भूमि जहां पर हम जा रहे हैं, which has been purchased for us. जो कि हमारे लिए खरीदी गई है. But while we are on the way, लेकिन जबकि हम मार्ग में हैं, we are hiding the word. हम वचन को छुपाए हुए We हैं. are hiding the Shekinah glory. हम शकाइना महिमा को छुपाए हुए हैं. That is what our Lord Jesus represented. ये है जो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह दर्शाते थे. He was the complete temple, वो संपूर्ण मंदिर थे made of wood. जो कि लकड़ी के बने हुए थे. He was Christos, वो क्रिस्तोस थे overlaid with gold. जो कि सोने से मढ़े गए थे. Inside him, उसके अंदर the Father dwelt. पिता ने वास किया. He said, destroy this temple, उसने कहा इस मंदिर को बर्बाद करो and I'll raise it in 3 days. और मैं 3 दिन में उसको खड़ा कर He दूंगा. was the temple of God. वो था खुदा का मंदिर. He was the vision of वो God. खुदा का दर्शन था. He came from a mountain, वो एक पहाड़ से आया था and he was going back home. और वापस घर जा रहा था. Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? That same pattern, वही नमूना, because Jesus was the fulfillment of the law. क्योंकि यीशु मसीह व्यवस्था की पूर्तिकरण थे. That's why his rapture is placed in the Old Testament. इसलिए उनके रैप्चर को स्थान मिलता है पुराने नामे में. And because of his blood, और उसके लहू की वजह से all the Old Testament saints came in the New Testament. सारे के सारे पुराने नामे के संत नए नामे में आ गए. That is why इसीलिए the rapture of the Old Testament saints is placed in the New Testament. इसलिए पुराने नामे के संतों का जो रैप्चर है उसको स्थान मिलता है नए नामे में. So what happens? तो क्या होता है? Our Lord Jesus हमारे प्रभु यीशु मसीह becomes the keystone, वो बन जाते हैं वो पत्थर जो कि आधार वाला पत्थर है, which ties the raptures of the Old Testament and the New Testament together. जो कि पुराने नामे के रैप्चर और नए नामे के रैप्चर को एक साथ जोड़ता है. He is the keystone rapture. वो है रैप्चर जो कि मुख्य आधार वाला पत्थर वाला रैप्चर है. And if you can understand the keystone rapture, you'll be understanding a lot what will happen today. और अगर आप आधार के पत्थर वाले रैप्चर को समझ गए तो आप समझेंगे अधिकाई से जो आज होने वाला है. Are you understanding? क्या समझ रहे हैं? God bless you, can be seated. खुदा बड़ी बरकत दे, आप लोग बैठ सकते हैं. Now let us go on in details of what happened in the rapture of our Lord Jesus. अब आइए विस्तृत रूप में देखते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के रैप्चर के समय क्या हुआ. I'm first reading from the message. मैं पहले संदेश से पढ़ रहा हूं. Jesus being the keystone now, अब यीशु मसीह मुख्य आधार वाले पत्थर हैं. he bear record, see. आप देखिए वो गवाही देते हैं, रखते हैं. He was the keystone between the Old and New Testament. पुराने नामे और नए नामे के बीच में वो आधार वाले पत्थर हैं. Because he had to first die and then rapture. क्योंकि उन्हें पहले मरना पड़ा फिर रैप्चर हुआ. He died, वो मरे, come to life, जीवित हुए and walked around here with us, और हमारे साथ यहाँ पर चले फिरे, and then was raptured up. और फिर वो ऊपर उठा लिए गए. Why did he die? क्यों मरे वो? To finish the law. ताकि व्यवस्था को समाप्त कर दें. And when he resurrected, और जब वो पुनरुत्थानित हुए, he brought justification. वो धर्मी ठहरना लेके आए. And with that, और उसके साथ he was raptured. वो रैप्चर में चले गए. Now we are going to bring that type today अब हम उस तस्वीर को आज लेकर के आएंगे and try to see what is going to happen in this age. और देखने की कोशिश करिए इस युग में क्या होगा. Amen. Let's read now the word of God आइए अब खुदा का वचन पढ़ते हैं. in Acts chapter 1, which we just read. प्रेरितों का काम पहला अध्याय जिसको हमने अभी पढ़ा. If you see carefully, it says here, अगर आप ध्यानपूर्वक देखें यहाँ लिखा है. you see, the rapture of Jesus is not the resurrection of Jesus. आप देखिए यीशु मसीह का जो रैप्चर, ये वाली घटना जो है ये पुनरुत्थान नहीं है. No, दोनों अलग अलग घटनाएं हैं. that's why it says here, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है he died, वो मरे, come to life, फिर जीवित हुए, walked around here with us, और यहाँ हमारे साथ चले फिरे, then was raptured. तब उसके बाद रैप्चर में गए. So his resurrection was not the rapture. तो उनका पुनरुत्थान रैप्चर नहीं था.
Resurrection is a different event, पुनरुत्थान एक दूसरी घटना है, फर्क घटना है, and rapture is another event. और जो रैप्चर है वो एक फर्क घटना है। We are interested in the rapture. हमारी दिलचस्पी तो रैप्चर में है। That rapture took place in Acts 1. ये वाला जो रैप्चर है ये घटा प्रेरितों का काम पहले अध्याय में। Or if you read the Gospels, और अगर आप सुसमाचारों को पढ़े, in the last chapter of Luke, लूका के अंतिम अध्याय में, and I think maybe Mark, मैं सोचता हूँ शायद मरकुस में, that is where is the record of the rapture of Jesus. वहां पर आपको विवरण मिलेगा यीशु मसीह के रैप्चर का। Now this is not the resurrection. अब ये पुनरुत्थान नहीं है। I'm reading from Acts 1, मैं प्रेरितों का काम पहले अध्याय से पढ़ रहा हूँ, and I want to show you from verse 3, और मैं तीसरी आयत से आपको दिखाना or चाहता I'll हूँ। read from verse 1. मैं पहली आयत से पढ़ रहा हूँ। The former treatise have I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach. हे थियोफिलस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा, Until the day in which he was taken up. After that, he through the Holy Ghost had given commandments unto the apostles whom he had chosen. उस दिन तक जब तक वो उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। You see, there was a day he was taken up. आप देखिए एक खास दिन है जिस दिन वो ऊपर उठा लिया गया। That line is in the Bible. ये वाली पंक्ति आप पाएंगे बाइबल में। He was taken up on a particular day. एक खास दिन वो ऊपर उठा लिया गया। After he had given commandments by the Holy Ghost to the apostles. पवित्र आत्मा को जब उसने आज्ञा दी प्रेरितों को पवित्र आत्मा को लेकर के, To whom also he shewed himself alive after his passion by many infallible proofs, being seen of them 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा। It's giving us a timeline. ये हमें एक समय रेखा दे रहा है। He died, वो मरा, he rose again, वो जी उठा, and after his resurrection, पुनरुत्थान के बाद with many infallible proofs, बहुत सारे ना गिरने वाले सबूतों के साथ, he was seen of them वो उनके द्वारा, चेलों के द्वारा दिखाई दिया गया for 40 days, 40 दिन तक के। speaking of the kingdom of God. और वो खुदा के राज के विषय में उनसे बोलता रहा। What was his last message? उसका oh my God, उसका अंतिम संदेश क्या था? Speaking of the kingdom of God. खुदा के राज के विषय में बोल रहा था। That was the subject. ये था विषय। That is when something happened. और ये वो समय जब कुछ हो गया। Oh my God, God richly bless you, brother. And being assembled together with them, भैया पढ़िए। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी that they should not depart from Jerusalem but wait for the promise of the Father. और यरूशलेम का नोच न छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। What would he say today? आज वो क्या कहेंगे? Because this is not the age of waiting for the Holy Ghost. क्योंकि ये वाला युग वो नहीं है कि जब हम पवित्र आत्मा का इंतजार करें। Yet, फिर भी there is a last filling. एक अंतिम भरा जाना है। Not just a part filling, थोड़ा भरना नहीं, but a filling to such an extent लेकिन एक भरना इस हद तक के that every fiber is filled with the Holy Ghost. कि हर एक रेशा रेशा पवित्र आत्मा से भर जाए। Then Ananias and Sapphira cannot stay. तब हनानिया और सफीरा यहाँ रह नहीं सकते। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? That is what we will now tarry for. अब इसके लिए हम इंतजार करेंगे। But I'd like to show you something. लेकिन मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। For John truly baptized with water, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया सच्चे रूप में, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। The Son of Man ministry was coming to an end. मनुष्य के पुत्र की सेवकाई खात्मे पे आ रही थी। And he's talking about the forerunner. और वो पेशरो के बारे में बता रहा था। How he baptized unto repentance. कैसे उसने तौबा के लिए बपतिस्मा दिया। But John's ministry was finished. लेकिन यूहन्ना की सेवकाई समाप्त हो गई थी। And now Christ had come. और अब मसीह आ चुका था। And he was now ready to be raptured. और वो तैयार था ताकि उसका रैप्चर हो जाए।
Now he was ready to go up. अब वो तैयार था ऊपर जाने के लिए। Jesus got ready to go up. यीशु तैयार हो गया ताकि वो ऊपर जा सके। Amen. He assembled his disciples तो उसने अपने चेलों को इकट्ठा किया and then he's telling them certain things. और कुछ खास चीज उनको बता रहा है वो। Verse 6. 6 आयत। When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, will thou at this time restore again the kingdom to Israel? सो उन्होंने Oh my इकट्ठे God. होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? Is sirs, श्रीमानो, is this the time? क्या ये वो समय है? That is the message on the rapture mountain. रैप्चर के पहाड़ पे ये है संदेश। Is this the time क्या ये वो समय है when you will restore the kingdom back to Israel? जबकि तू राज को वापस बहाल कर देगा इज़राइल को? Again, the subject is kingdom. फिर से जो विषय है वो राज्य है। They are asking a direct question for millennium. वो सीधा सीधा सवाल पूछ रहे हैं 1000 साल की बादशाहत के लिए। Is millennium beginning now? क्या 1000 साल की बादशाहत अब शुरू हो रही है? 2000 years back, they were not aware 2000 साल पहले वो इस बात को नहीं जानते थे that God had another plan. कि खुदा के पास एक और योजना है And that plan didn't just have Jews. और उस योजना में केवल यहूदी नहीं थे, There is a fullness of the Gentiles. एक अन्य जातियों के पूर्तिकरण है And a part of Israel had to be made blind और एक इज़राइल का हिस्सा वो अंधा किया जाएगा so that the fullness of Gentiles can come in. कि ताकि पूरी तरह से अन्य जाति आ सके। God was opening a time loop खुदावंद एक समय के लक्ष्य को खोल रहे थे which was hidden from the prophets, क्योंकि नबियों से छुपाया गया, which was hidden from the ministers. क्योंकि सेवक गणों से छुपाया गया। They were prophesied of that time, उन्होंने उस समय के विषय में नबूवत की थी, but they didn't know what time that was. लेकिन वो जानते नहीं थे वो समय है क्या। But now the time was opening up. अब वो समय उनके सामने वो छल्ला खुल रहा था। After the rapture, रैप्चर के बाद after a few days, कुछ दिनों के पश्चात when they received the Holy Ghost, जब उन्होंने पवित्र आत्मा का दान पाया and when the पवित्र आत्मा ministry पाया, began, और जब सेवकाई चालू हुई, just after a few days, कुछ दिनों के पश्चात Peter would be preaching to Cornelius. पतरस प्रचार करेगा कर्नेलियस को। That would be the first hint ये होगा पहला सुराग that God is now interested in कि Gentiles. खुदावंद की अब दिलचस्पी अन्य जातियों की ओर है। The message to the Gentiles started in a home meeting. Oh God bless you। एक अन्य जातियों की जो अन्य जातियों की डीलिंग की जो सभा है वो चालू होती है एक घर की सभा से। That was a home meeting. ये घर की सभा थी, The house of Cornelius. कर्नेलियस का घर। That was the first sign ये था पहला चेन that God is interested in the Gentiles. कि खुदावंद की दिलचस्पी अन्य जातियों में है, Because Peter was given the keys. क्योंकि पतरस को कुंजी दी गई थी And the man who had the keys और वो मनुष्य जिसके पास कुंजियां थी went to the Gentiles वो अन्य जातियों के पास गया to use those keys. ताकि उन कुंजियों का इस्तेमाल करे। And while he spake the word, और जबकि वो उसने वचनों को बोला, the Holy Ghost fell on them. पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर के आ गया। God was opening a time loop खुदावंद एक समय के छल्ले को खोल रहा था which the disciples themselves didn't know. क्योंकि चेले स्वयं नहीं जानते थे, But now God was going to do it. लेकिन अब खुदा उसको करने वाला था। God is going to answer them. खुदा उनको उत्तर देगा। It's not for you to know the times and seasons, समय और मौसमों को जानना तुम्हारा समय नहीं, तुम्हारे लिए नहीं है, but you wait in Jerusalem लेकिन तुम यरूशलेम में इंतजार करना until you be endued with power. जब तक कि तुम्हें सामर्थ ऊपर से मिल ना जाए, Because God knew क्योंकि खुदावंद जानते हैं a time loop is opening up. एक समय का छल्ला खुल रहा है, A time loop when he'll be dealing with the Gentiles, एक समय का छल्ला जबकि वो अपनी संबंध बनाएंगे अन्य जातियों के साथ, which was not known previously, जो कि पहले नहीं जाना गया but will be known now. लेकिन अब जाना जाएगा। Peter will be moving to Cornelius. पतरस जो है कर्नेलियस के घर बढ़ेगा। Philip would be preaching to the eunuch. फिलिप्पुस प्रचार करेगा उस खोजे को। God will be interested in those Gentiles. खुदावंद की दिलचस्पी होगी उन अन्य जातियों की ओर, And slowly when the doors for the Gentiles will open up, और धीमे धीमे अन्य जातियों के द्वार खुल जाएंगे। Peter will fade. पतरस जो है वो फेड हो जाएगा, He will remain in Jerusalem. वो यरूशलेम में रह जाएगा, But another minister would come, लेकिन एक और सेवक आएगा whose name would be Paul, जिसका नाम होगा पौलुस, who will be chosen on the way of Damascus. जो कि दमिश्क की राह पे चुन लिया जाएगा। And God will light the first candlestick. और खुदा पहले क्षमादान को चला देगा। Boom! बूम
And the first candlestick comes up और पहला क्षमादान निकल के आ जाएगा by the pillar of fire आग के सतूर के द्वारा on the way of Damascus. दमिश्क की राह पे, And tell him, और उससे कहेगा I have chosen you मैंने तुझे चुन लिया है for a light for the Gentiles. अन्य जातियों की रोशनी के लिए। Then he will take Barnabas. फिर वो बरनबास को लेगा And with Barnabas, he will start visiting places. और बरनबास के साथ वो जगह जगह जाएगा And so slowly and gradually, और धीमे धीमे within a span of few years, कुछ ही वर्षों पश्चात the place and center of worship will shift from Jerusalem to Antioch. जो आराधना का स्थान है वो बदल जाएगा यरूशलेम से अंतियोक में, अंताकिया में। Antioch will become the center. अंताकिया बन जाएगा केंद्र। Antioch will become the place where everything will happen. अंताकिया वो केंद्र बन जाएगा जहाँ पे सब कुछ होगा। It will become the headquarters वो बन जाएगा मुख्यालय, from where the message will go everywhere. जहाँ से संदेश हर जगह जाएगा, From where Paul will be going in his missionary tours. जहाँ से पौलुस अपनी मिशनरी टूर्स में जाएगा। Then the message will go to Macedonia. फिर जो संदेश जाएगा मकदूनिया, It'll go to Corinth. वो कुरिन्थियों में जाएगा। It'll go to वो Thessalonica. थिस्सलुनीकियों में जाएगा। It'll go to the Bereans. वो जाएगा बीरियों के पास, It'll go to all those in the Europe. और वो जितने भी सारे यूरोप में उनके पास जाएगा। Greece, Melita, Cyprus, they will hear the word. ग्रीस, मलीटा, साइप्रस, वो सब इस संदेश को सुनेंगे। The people will start understanding लोग समझने लगेंगे that God is now shifting somewhere else. खुदावंद अब कहीं और स्थानांतरित हो रहा है। He'll start moving westward. वो पश्चिम की ओर बढ़ेगा। God bless you। He'll start showing what's happening in Europe. वो दिखाएगा यूरोप में क्या हो रहा है। He'll say, just wait for Asia. वो कहेगा एशिया के लिए एक मिनट इंतजार करो। Paul, you stop for Asia. पौलुस तू एशिया के लिए रुक जा, Because Paul wanted to go to Asia. क्योंकि पौलुस एशिया में जाना चाहता था। But the first messenger was stopped. लेकिन पहला संदेश वहां रोक दिया गया। Don't go to Asia. एशिया मत जाना। Asia's time will come in 1900s. एशिया का जो समय आएगा 1900 के उसमें, Because after seven शताब्दी में church आएगा। ages. After seven church क्योंकि ages. 7 कलीसिया कालों के बाद When the Omega messenger comes. जब ओमेगा संदेश वहां का आएगा On August the 7th. अगस्त 7 को, I'll show him a vision. मैं उसको एक दर्शन दिखाऊंगा। I'll show him Durban, South Africa. मैं उसको डरबन साउथ अफ्रीका दिखाऊंगा। Then I'll take him to Asia. तब उसको एशिया ले जाऊंगा। I'll take him to Mumbai. मैं उसको बॉम्बे ले जाऊंगा। I'll show him India. मैं उसको हिंदुस्तान दिखाऊंगा। I'll show him the Asian countries. मैं उसको एशिया के जो देश है वो दिखाऊंगा। Because that will be the end of the ministry. क्योंकि वो सेवकाई का समापन होगा। You are not going today. तुम आज नहीं जा रहे हो, But I'll take the message then. लेकिन तो मैं संदेश को तब ले जाऊंगा। That is where the gospel will finish up. ये वो स्थान है जहाँ पर एक सुसमाचार समाप्त होगा। For the time being, समय के लिए, थोड़े समय के लिए people like Thomas थॉमस जैसे लोग will go and do the work of missionary. वो मिशनरी का काम करेंगे। Few people will do the work of missionary. कुछ लोग मिशनरी का काम करेंगे। But when the time comes in the Omega, लेकिन जब ओमेगा में समय आएगा, when the time of the fullness of Gentiles is finished, जब अन्य जाति का पूर्तिकरण का समय समाप्त होगा, who knows कौन जानता है? that if the times of the Gentiles begin with a home meeting, कौन जानता है कि अगर अन्य जातियों का कि जो डीलिंग का जो समय है वो शुरू हुआ एक घर की सभा से, it ends up with a home meeting. एक घर की सभा से समाप्त हो? Who knows that? कौन जानता है इसको? Nobody knows what's happening then. कोई नहीं जानता क्या हो रहा है। But one of these days there will be a meeting. लेकिन इन्हीं किन्हीं दिनों में एक सभा होगी And there will be a last soul saved. और एक अंतिम प्राण बचेगा। And when a last soul is saved, और जब अंतिम प्राण बच जाएगा, maybe a last black sheep, शायद हो सकता है आखिरी काली भेड़, then everything is finished. तब सब कुछ समाप्त हो जाएगा। Then the time comes तब समय आएगा to restore the kingdom to कि Israel. राज्य वापस बहाल कर दिया जाए इज़राइल को। Amen. While they're asking that question, जबकि वो ये सवाल पूछ रहे हैं, sirs, is this the time? श्रीमान क्या ये उस समय है? After 2000 years, 2000 वर्षों के बाद he's giving an answer. वो एक उत्तर दे रहा है, Sirs, श्रीमान this is the time. ये है वो समय। श्रीमान ये है वो समय। This is the end of the world. ये जगत का समापन है। This is when the gospel is returning back to the Jews. ये वो समय है जबकि सुसमाचार वापस यहूदियों की ओर लौट रहा As the है। Jews were blinded, और जैसे यहूदी अंधे किए गए so that the gospel could turn to the Gentiles. ताकि सुसमाचार मुड़ के जा सके अन्य जातियों के In the पास। Laodicean age, लाउदिया कलीसिया काल the में Gentiles would be blinded, अन्य जाति अंधे हो जाएंगे so that the gospel can return back to the Jews. ताकि सुसमाचार वापस लौट सके And there will be some यहूदियों के people पास। in Delhi praying for और 1,44,000. यहाँ दिल्ली में कुछ लोग होंगे जो कि प्रार्थना कर रहे होंगे 1,44,000 के लिए। There will be some people who are having very nice feelings for Israel. कुछ लोग होंगे जिनके पास बहुत अच्छी अनुभूतियां होंगी इजराइल को लेकर के। They would be reading Romans 11. वो रोमियो 11 पढ़ रहे Oh, होंगे। I'm feeling excited. मैं बहुत ही उत्तेजित महसूस कर रहा हूँ। Oh, I feel very stimulated. मैं बहुत ही सुरूर को महसूस कर रहा हूँ। When the days of coming of the rock, जबकि वो दिन, जबकि चट्टान आएगा, in the days of the 10 toes, 10
उंगलियों के दिनों में, when the capstone comes, जब चोटी का पत्थर आएगा, when the end time comes, जब अंत समय आएगा, when the 70th jubilee strikes, जब 70वीं जुबली आएगी, it's the time for the going home of the bride. ये वो समय होगा दुल्हन का यहाँ से घर जाने का। There will be signs in the heaven, स्वर्ग में चिन्ह होंगे, blood moons, लहू वाले lunar चांद, eclipse, लूनर एक्लिप्स solar eclipse, और सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, UFOs, यूएफओ, strange noises, बड़ी विचित्र आवाजें all through the world, पूरे संसार में as a sign एक चिन्ह के पत्थर that the hour has की come, घड़ी आ पहुंची है, that the kingdom be restored back to Israel. राज्य वापस बहाल कर दिया जाए इजराइल को। They had to wait 2000 years उन्हें इंतजार करना पड़ा 2000 साल to receive their answer. अपना उत्तर को का जवाब प्राप्त करने के लिए। In the meantime, they slept, अपने सवाल का जवाब प्राप्त करने के लिए बीच में वो सो गए, and they are still sleeping under the dust, और अभी भी वो सो रहे मिट्टी के नीचे, but they are still sleeping under expectations. लेकिन अभी भी अपेक्षा के तहत वो सो रहे हैं वहां पे। Because if there is a question, क्योंकि अगर एक सवाल है there has to be an answer. तो जरूरी है कि एक जवाब भी हो। And Brother Branham said भाई ब्रैनम ने कहा that expectation needs to be met. जरूरी है कि अपेक्षा के हेतु उसको जवाब मिले। The time has come समय आ चुका है that the gospel returned to the Jews. कि सुसमाचार वापस यहूदियों की ओर चला जाए। For that, Naomi had to return back. इसके लिए नाओमी को वापस लौटना पड़ा, And when Naomi is returning back, और जब नाओमी लौट रही है, Ruth is returning back. रूथ वापस लौट रही है, And when Naomi is returning back to the और homeland, जब नाओमी वापस मातृभूमि में लौट रही है, in the harvest time, कटनी के समय में it's Boaz, the Lord of the harvest, ये बोआज है जो कटनी का मालिक है, revealing himself to Ruth जो कि अपने आप को प्रकट कर रहा है रूथ के ऊपर in a night vision, एक रात के दर्शन में, giving the 6 for portions, उसको 6 नपुआ दे रहा है, because he's the 7th one. क्योंकि वो 7वां खुद है स्वयं। And I want to tell you, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, the other one who was nearer, that is the devil, is ripped apart of all his titles. और वो जो कि दूसरा जो निकट कुटुंबी है, उसके ऊपर उसके जो सारे अधिकार हैं उससे छीन लिए गए। That is the devil, ये वो शैतान है who's ripped apart of all his rights. जो कि जो कुछ उसके अधिकार हैं वो सारे उससे छीन लिए गए। That other kinsman had no right over Ruth. वो दूसरा निकट कुटुंबी है, उसका कोई अधिकार रूथ के ऊपर नहीं है। Satan has got no right over this bride. शैतान का कोई अधिकार इस दुल्हन के ऊपर नहीं है। He cannot touch her. वो उसको छू नहीं सकता। She is the purchased possession वो खरीदी हुई उसकी वो कब्ज़ of मिल्कियत है, Boaz. बोआज की मिल्कियत है। Can you say amen? क्या आमीन कह सकते हैं आप? Amen. Sit down, please. कृपया बैठ जाइए। I'm just showing you what's happening. मैं आपको केवल दिखा रहा हूँ क्या हो रहा है। Those Jews didn't have an answer, उन यहूदियों के पास जवाब नहीं था, but God was opening up a dispensation. खुदावंद एक काल को, एक समय को खोल रहा था। He was opening up the time for the Gentiles. वो अन्य जातियों के समय को खोल रहा था, And when he was opening that time, और जब वो समय को खोल रहा था, they are now slowly going to come to an understanding. अब वो इस समझ पे पहुंचेंगे धीमे धीमे। Oh, there's a lot of time yet. अभी बहुत सारा समय बचा है, Because the Gentiles have to come. क्योंकि अन्य जातियों को आना है पहले। God is choosing a people out of Gentiles for his name. खुदावंद अपने नाम के कारण अन्य जातियों में से लोगों को चुन रहा है, And that is his bride. और वो उसकी दुल्हन है। But Branham said, भाई ब्रैनम ने कहा, who carries my name? जो मेरे नाम को लेके चलती है, It's my wife. ये मेरी पत्नी है। And if God is choosing a people out of Gentiles for his name, और अगर खुदावंद अन्य जाति में से कुछ लोगों को चुन रहा है अपने नाम के खातिर, it's a very clear verse telling that he's choosing a people who will be married to him. ये खास आयत लिखी है कि वो लोगों को चुन रहा है ताकि वो उसके साथ उनकी शादी हो सके, And they take his name upon them. और वो उसके नाम को अपने ऊपर ले लेंगे। That marriage never took place in church ages. ये वाली जो शादी है कलीसिया कालों में नहीं घटी, That marriage took place only in this age. वो वाली शादी केवल मात्र इस युग में घटी है। Amen. That name got transferred today. वो नाम आज के दिन के लिए स्थानांतरित हो गया, And that is why today the bride, how it is placed close to the invisible union message. और अदृश्य मिलाप वाले संदेश के कितने करीब पास रहे, खूबसूरती से रखा गया, Because it is the invisible union that brings the name transfer. क्योंकि ये अदृश्य मिलाप है। Jesus. हम देख रहे हैं अपने प्रभु यीशु मसीह का रैप्चर को, And that is a witness for us. और वो हमारे लिए एक गवाही है। So he's telling them सब उनसे कह रहा है in verse 7, it is not for you to know the times or the seasons. 7वीं आयत में उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों का जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है। Oh, that's a huge message. और ये बहुत ही विशाल का संदेश है। Times and seasons. समय और काल, Oh, there's a big chart on that. इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा चार्ट है।
We will see it later on if God gives grace. अगर खुदावंद हमें अनुग्रह दें तो हम उसको बाद में देखेंगे. Which Father hath put in his own power. जिनको कि पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है. But you shall receive power. परंतु तुम्हें सामर्थ मिलेगी. After that the Holy Ghost is come upon you. जबकि पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आ जाएगा उसके बाद. And you shall be witnesses unto me. और तुम मेरे लिए गवाह ठहरोगे. Both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria. यरूशलेम में भी और यहूदिया और सामरिया में भी. What's happening? क्या हो रहा है? He's just talking with them. वो केवल उनसे बातचीत कर रहा है. It's a morning talk. एक सुबह की वार्तालाप है. He has taken them on a mountain. We'll see it's a mountain. हम देख रहे हैं कि वो उनको एक पहाड़ पे ले जा रहा है. And when he goes with them on the mountain, और जब वो उनके साथ पहाड़ पे जाता है, he's just talking with them. वो केवल उनसे बातचीत करता है. You shall be witnesses तुम गवाह होगे in Jerusalem, यरूशलेम में, in all Judea, संपूर्ण यहूदिया में and in Samaria. और सामरिया में. And then he goes on to the uttermost parts of the earth. और पृथ्वी के छोर तक के. In other words, he's telling in short. दूसरे शब्दों में वो विस्तार में छोटे The रूप में कह रहा gospel है. will go from Jerusalem to Judea to Samaria to the whole world. और वो क्या कहना चाह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की ये जो सुसमाचार है वो यरूशलेम से यहूदिया में जाएगा, फिर सामरिया में जाएगा और पृथ्वी की छोर तक चला जाएगा. It is going out to the Gentiles. वो अन्य जातियों की ओर जा रहा है. He's giving them a hint. वो उनको एक सुराग दे रहा है. Verse 9. 9वीं आयत. This is where the rapture takes place. अब ये वो स्थान है जहाँ रैप्चर घटता है. And when he had spoken these things, और जब उसने ये बातें बोल दी, while they beheld, जबकि वो देख रहे थे, thank God, there were some people who witnessed it. खुदा का धन्यवाद हो कुछ लोग हैं जिन्होंने उसको अपनी आंखों से देख करके वो चश्मदीद गवाह बन गए. When Enoch got raptured, जब हनोक का रैप्चर हुआ, there's nobody to see it. कोई था नहीं वहां उसको देखने के लिए. It was only Moses who saw it by revelation. केवल मूसा था जिसने मुकाशवे के तहत उसको देखा. Moses was taken to the time of Genesis मूसा उत्पत्ति के समय ले जाया गया and started seeing what happened in Eden. और उसने देखा अदन में क्या हुआ. Then he started seeing from where did Cain come. और उसने देखा कि कैन कहां से आया. And he's seeing the Abel line. और फिर वो हाबिल की वंशावली देख रहा है. And then he sees what happens with this man, और देख रहा है इस मनुष्य के साथ क्या हो रहा है. who's the seventh from Adam. क्योंकि आदम से 7वां है. How he's walking on the earth. कैसे वो पृथ्वी पर चल रहा है. But one day he disappears. लेकिन एक दिन वो गायब हो जाता है. And Moses first hand sees what actually happened. और मूसा वो है जिसने पहली बार देखा कि क्या हुआ है वास्तविक रूप में. Even people in the days of Enoch didn't know what happened to Enoch. यहाँ तक कि हनोक के दिनों में भी लोग नहीं जानते थे कि हनोक के साथ हुआ क्या. But actually the real witness was Moses. लेकिन वास्तविक गवाह जो बना वो बना मूसा. Because when he went to the mount 40 days, 40 nights, क्योंकि जब 40 दिन 40 रात के लिए वो पहाड़ पे गया, God started opening this vision to him खुदावंद इस दर्शन को उसके सामने खोलने लगे and started showing to him. और उसको दिखाने लगे. Can you see क्या तुम देख सकते हो this man ये who मनुष्य built the pyramid? जिसने कि पिरामिड का निर्माण किया, He's taken up. ये उठा लिया गया ऊपर. There's no mention in the Bible that Enoch made the pyramid. बाइबल में कहीं भी विवरण नहीं लिखा, कहीं उल्लेख नहीं लिखा कि हनोक ने पिरामिड को बनाया. Maybe Moses was not shown that part. शायद मूसा को ये वाला हिस्सा दिखाया नहीं गया. Or even if it was shown, और यहाँ तक कि अगर दिखाया भी गया, he never mentions it. उसने उसका कभी भी उल्लेख दिया नहीं. But it was left for the Omega messenger, लेकिन ये छोड़ दिया गया ओमेगा संदेशवाहक के लिए, who will pick up that aspect of Enoch's life. जो कि हनोक के जीवन के उस वाले पहलू को उठाएगा. And he also went to that day और वो भी उस दिन में ले जाया गया. and saw what actually happened there. और उसने वास्तविक रूप में देखा उस दिन हुआ क्या था. And he saw how many years he walked, और उसने देखा कितने साल वो चला, which is not even mentioned in the Bible. इसका कि विवरण बाइबल में लिखा भी मिलता नहीं है. Amen. आमीन. And he says Enoch walked with God for 500 years. और उसने कहा कि हनोक खुदा के साथ 500 साल तक के चलता रहा. How do you know 500? आप कैसे जानते हैं 500 साल? I saw it. मैंने उसको देखा, I'm a witness to it. मैं इसके लिए गवाह हूँ. I know what happened there. मैंने देखा वहां पे क्या हुआ. And I know what Enoch done. और मुझे मालूम है हनोक ने क्या किया. He built the pyramid. उसने पिरामिड का निर्माण किया. Amen. So actually, So, वास्तविक रूप में for that first rapture, पहले रैप्चर के लिए there were no living witnesses कोई जीवित गवाह नहीं थे who would say, I saw it with my eyes. जो ये कहे कि मैंने अपनी आंखों से इसको देखा. Moses, Brother Branham, were taken to that time मूसा और भाई ब्रैनम उस समय में ले जाए गए to witness that. ताकि उसके वो गवाह बने. But actually nobody saw it. लेकिन वास्तविक रूप में किसी ने नहीं देखा उसको. That is why Moses writes, इसलिए मूसा लिखता है, and Enoch walked with God, और हनोक खुदा के साथ चलता रहा and he was not, और वो गायब हो गया. for God took him. क्योंकि खुदा उसको ले गया. How do you know, Moses, that God took him? मूसा तुझे कैसे मालूम खुदा उसको ले गया? I saw it. मैंने उसको देखा.
But the time of Enoch itself, there was no living witness. लेकिन हनोक के ही समय में जीवते गवाह थे नहीं. But in the rapture of Elijah, लेकिन रैप्चर के एलिया के रैप्चर में there was one living witness. एक जीवित गवाह था. And Amen. that was Elisha, और वो था एलीशा, who with his open eyes saw Elijah going up. जिसने अपनी खुली आंखों से एलिया को ऊपर जाते हुए देखा. 50 sons of the prophet couldn't see it. जो नबियों के 50 पुत्र थे वो उसको देख नहीं पाए. Jordan is not a very broad river. यरदन बहुत चौड़ी नदी नहीं है. And 50 sons of the prophet are on this side. और जो 50 नबी के पुत्र हैं वो नदी के इस पार हैं. And they couldn't see that chariot of fire. और वो अग्नि में रथ को देख नहीं पाए. They couldn't see that dimension. वो उस अय्याम को देख नहीं पाए. God bless you my brother. It was open to Elisha. ये एलीशा के लिए खोल दिया गया. Yes sir. That is why Elijah said, इसलिए एलिया ने कहा, if you can see me going up, अगर तू मुझे ऊपर उठते हुए ऊपर जाते हुए देख पाए तो. because 50 sons of the prophets couldn't see that. क्योंकि नबी 50 जो पुत्र हैं नबियों के वो देख नहीं पाए इस चीज को. To see Elijah going up, it is not that I'm standing there हाँ, एलिया को ऊपर जाते हुए देखने का मतलब ये नहीं कि मैं वहां खड़ा हूं तो मैं देख रहा हूं उसको and I'm seeing him going up. और मैं उसको ऊपर जाते हुए देख रहा हूं. It is important ये जरूरी है that the unseen is opened कि अदृश्य खुल जाए before Elisha, एलीशा के सामने. and only then और केवल मात्र तभी when Elisha saw it with his open eyes, एलीशा ने अपनी आंखों से उसको खुली आंखों से देखा. when he saw the chariots of fire, फिर उसने अग्नि में रथों को देखा. his eyes were open to the unseen. उसकी जो आंखें वो अदृश्य के लिए खुल गईं. अब ये किस चीज की गवाही है? What is the testimony behind that? इसके पीछे क्या गवाही है? Just before the rapture, now रैप्चर जो अब होने वाला है ठीक उससे पहले the eyes of the bride would be opened to the unseen. दुल्हन की जो आंखें हैं वो अदृश्य के लिए खुल जाएंगी. And she with her literal eyes shall start seeing the unseen world. और वो इन अपनी वास्तविक आंखों से अदृश्य को देखने लगेंगी. Till now we are seeing by the eyes of faith, अब तक के हम देख रहे हैं विश्वास रूपी आंखों से. but then we will see face to face. तब हम मुंह दर मुंह देखेंगे. That thing is to happen before the rapture. ये चीज होगी रैप्चर से पहले. If I read one of the quotes Brother Branham said, अगर मैंने एक कोट पढ़ा भाई ब्रैनम ने कहा उसमें, I think last Tuesday itself I read it, शायद पिछले ही मंगलवार मैंने पढ़ा था. when Elisha crossed Jordan with Elijah, जब एलीशा ने एलिया के साथ यरदन नदी को पार किया, hooked to every bush was a chariot. हर एक झाड़ी से बंधा हुआ था. How can you see it? आप तुम कैसे देख सकते हो? 50 sons of the prophets cannot. नबी के 50 पुत्र नहीं देख सकते. Why can you see it? तुम कैसे देख सकते हो? Because your eyes have been opened. क्योंकि तुम्हारी आंखें खोल दी गई हैं. हालेलुया. Why can some people see fire? क्यों कुछ लोग आग देख सकते हैं, Others cannot see fire. बाकी आग देख नहीं सकते? देखने के बाद भी नहीं देख सकते. हाँ जी. देखते हुए देखेंगे लेकिन प्रतीति नहीं करेंगे. सच है. उनके सामने से आग गुजरेगी, उनके सामने से सुपरनैचुरल घटेगा, सच है और ब्रदर. उन्हें समझ में भी नहीं आएगा. ओह माय गॉड. Why are some people not able to see? क्यों कुछ लोग देख नहीं पा रहे? And why are some people able to see? क्यों कुछ लोग देख पा रहे हैं? My. Hallelujah. And those who are able to see और वो जो कि देख पा रहे हैं are the next carriers of the message. वो हैं अगले वाहक संदेश को ले जाने वाले. Try to catch the message. संदेश को पकड़ने की कोशिश करिए. I can show you the picture of pillar of fire or Brother Branham. मैं भाई ब्रैनम की तस्वीर को दिखा सकता हूं जिसमें कि आग का सतून आया. I can show you the picture of the cloud. मैं बादल की तस्वीर आपको दिखा सकता हूं. Even that picture which came in Vijayawada. यहां तक कि वो तस्वीर जो कि विजयवाड़ा में आई. I can show you all the pictures. मैं आपको सारी तस्वीरें दिखा सकता हूं. Yet you may not see. फिर भी आप देख ना पाए. It can happen. ऐसा हो सकता है. Seeing you may not see. देखते हुए आप देख ना पाओ.
really what you had to see. वास्तविक रूप में जो आपको देखना चाहिए था। And the condition was, और उसमें जो हालत थी वो ये थी, कंडीशन ये थी that if you can see me going up, शर्त ये थी कि अगर तुम मुझे ऊपर जाते हुए देख लो, only then you will receive the double portion. तभी तुमको वो दूना भाग मिलेगा। You can't have the double portion without seeing. तुम्हें दूना भाग मिल नहीं सकता जब तक कि तुम देख ना लो। If the seeing is not in you, अगर ये देखना तुम्हारे अंदर ना हो, I'm sorry, मैं माफी चाहूंगा, there's no ministry for you then. तो आपके लिए कोई सेवकाई है नहीं फिर। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? But Elisha saw it. लेकिन एलीशा ने इसको देखा, He saw with his eyes उसने अपनी आंखों से देखा the unseen world. अदृश्य संसार को। Every meeting, हर एक सभा, unseen world comes here. अदृश्य संसार यहाँ पर आता है। But the big question is, लेकिन बड़ा सवाल ये है, how many are able to see? कितने उसको देख पा रहे हैं? Amen. That is the main thing to understand. ये मुख्य चीज है समझने के लिए, Because the condition was, क्योंकि शर्त ये थी, if you can see me going up, अगर तुम मुझे यहाँ से ऊपर जाते हुए देख लो, then you'll receive that double portion. तब तुम्हें मिलेगा, तब तुम्हें प्राप्ति होगी उस In other भाग की। words, दूसरे शब्दों में, You receive the continuation of my ministry. तुम्हें मेरी जो सेवकाई है उसकी बढ़त मिलेगी। You will finish my last ministry. तुम मेरी अंतिम सेवकाई को पूरा करोगे। Oh my! Oh my God! Oh my! हालेलुया! You will finish the commission. तुम उस सेवकाई को, उस ठहराए हुए कार्य को पूरा करोगे। You will anoint Jehu. तुम येहू का अभिषेक करोगे। You will anoint Hazael. तुम हजाएल का अभिषेक करोगे। You will bring the death of Jezebel. तुम इजाबेल की मृत्यु को लेके आओगे। It'll happen in your days. ये तुम्हारे दिनों में होगा। You young men watch. तुम जवानों ध्यान से देखना, Sweeping this message. इस संदेश को ले जाते हुए। But which kind of young man? लेकिन किस किस्म के जवान? Not those who are blinded by the world, वो नहीं जो कि संसार के द्वारा अंधे किए गए, but those whose eyes have been opened लेकिन वो जिनकी आंखें खुल गई हैं to the vision of God. खुदा के दर्शन के लिए। What did Ezekiel say? एजेकिएल ने क्या कहा? I saw. मैंने देखा। What did Isaiah say? यशायाह ने क्या कहा? I saw the Lord. मैंने प्रभु को देखा। It's not just hearing, ये केवल सुनना नहीं it's है, receiving a vision. ये एक दर्शन की प्राप्ति है। How many of you know आप में से कितने जानते हैं right now इसी समय you are in a vision आप एक दर्शन में हो? and you are a part of a vision और आप एक दर्शन का हिस्सा हो which is happening here? जो कि यहाँ पर घट रहा है। My. हालेलुया, हालेलुया। Enoch, हनोक, no witnesses. उसके पास कोई गवाह नहीं है। Elijah, एलाइजा, there is one witness. एलिया के पास केवल एक गवाह है Elisha, जो कि एलीशा है। because after he parted the Jordan second time, क्योंकि जब उसने दोबारा से यरदन को फाड़ा, he rode the trail again. उसने सवारी को दोबारा करा। You know that. आप जानते हैं इस बात को। The 50 sons of the prophet said, come on, let's go and find out where Elijah is. तो जो 50 पुत्र हैं जो कि भविष्यवक्ताओं के, उन्होंने कहा आओ हम देखते हैं, ढूंढते हैं कि एलिया कहाँ चला गया। Elisha said, he's gone up, I saw it. एलीशा ने कहा वो ऊपर चला गया, मैंने उसको अपनी आंखों से देखा। No, let's find him. He must have gone somewhere. ना, आओ उसको ढूंढते हैं, वो कहीं चला गया होगा। Then Elisha said, if you want, you can. तब एलीशा ने कहा अगर तुम ढूंढना चाहते हो जाओ ढूंढते रहो। If you want to walk in blindness, you can. अगर अंधेपन में तुम चलना चाहते हो चलते रहो। Keep on searching for that man. ढूंढते रहो उस मनुष्य को। And they kept on searching for Elijah. और एलिया को वो ढूंढते ही रहे। But there was no return ministry. लेकिन कोई लौटने वाली सेवकाई थी नहीं। Amen. There was no return ministry. कोई लौटने वाली सेवकाई थी नहीं। The ministry had returned in a man. वो जो सेवकाई वो लौट करके एक मनुष्य में आ गई थी। Amen. They couldn't find Elijah anywhere. वो एलिया को कहीं नहीं ढूंढ पाए। They kept on looking for him, वो उसके लिए उसको ढूंढते रहे, but they couldn't find him. लेकिन वो ढूंढ नहीं पाए उसे। Why? क्यों? There were no witnesses. क्योंकि वो गवाह थे ही नहीं। They didn't see that rapture. उन्होंने उस रैप्चर को देखा ही नहीं। But then, लेकिन तब in the time of our Lord Jesus, हमारे प्रभु यीशु मसीह के समय में at least 120 or even more than that, or maybe 12 or 50 or whatever, I don't know the count, saw with their eyes Jesus going up.
और मैं सोचता हूं कि 120 या शायद उससे ज्यादा या 12, 15, 50 उन्होंने अपनी आंखों से यीशु मसीह को हवा में ऊपर जाते हुए देखा। At least 11. कम से कम 11 They were witnesses. वो गवाह थे, The disciples वो चेले who saw him going up. जिन्होंने उसे ऊपर जाते हुए देखा। So it's not one now. तो अब एक नहीं है, The 11 at least कम से कम 11 who saw him going up. जिन्होंने उसे ऊपर जाते हुए देखा। 500 saw him resurrected. 500 ने उसके पुनरुत्थान को देखा, Saw resurrected Christ. उन्होंने पुनरुत्थानित मसीह को देखा। But at least 11 saw him going up. लेकिन कम से कम 11 ने देखा उसको हवा में ऊपर जाते हुए। They were living witnesses of his rapture. उसके रैप्चर के वो जीवित गवाह थे। What did they see? क्या देखा उन्होंने? Let's try to dramatize it for a little time. आइए थोड़े समय इसको ड्रामा के रूप में देखते Sit हैं। down, please. कृपया बैठ जाइए। Amen. आमीन। वंडरफुल माय ब्रदर। He's just talking with them. वो केवल मात्र उनसे बातचीत कर रहा है, Just a fellowship like every time. एक संगति के रूप में जैसे हर बार होती थी। We have spoken these things जब उसने ये बातें बोल दी, while they beheld. जबकि वो देख रहे थे, While they beheld, जबकि वो देख रहे थे, he was taken up. वो ऊपर उठा लिया गया। He was taken up. वो ऊपर उठा लिया गया। They're talking with Jesus. वो यीशु मसीह से बातचीत कर रहे हैं। Suddenly, अचानक से they can see him going up. वो उसको ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। His feet are not on the ground. उसका पांव अब पृथ्वी के ऊपर नहीं है, It's now in air. अब वो हवा में है And he's just moving up, up, up. और वो ऊपर 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 जा रहा है। Hey, what is this? और ये क्या है? What is this? ये क्या है? This man is now going up. ये मनुष्य तो ऊपर जा रहा है। अचानक आयत याद आई. I came from above मैं ऊपर से आया and I go back. और मैं वापस ऊपर जाता हूं। Amen. While they were beholding, जबकि वो देख रहे थे, he was taken up. वो ऊपर उठा लिया गया And a cloud, singular, received him out of their sight. और एक बादल, एक वचन, एक बादल ने उनके आंखों के सामने उसको ओझल कर दिया, छुपा लिया। A cloud made the body vanish. एक बादल जिसने देह को बनाया वो गायब हो गई। I'm very carefully framing the words. मैं बड़े ही ध्यानपूर्वक शब्दों को बना रहा हूं, बोल रहा हूं आपके सामने। A cloud took that body out of their sight. एक बादल ने उस देह को उनकी आंखों से छिपा लिया। Not clouds, बादलों के विषय में बात नहीं हो रही, but just a cloud. लेकिन एक बादल, एक वचन, There was a very specific cloud. एक खास बादल था Behind which he disappeared. जिसके पीछे वो छुप गया, गायब हो गया। A cloud received him out of their sight. एक बादल ने उसको अपने अंदर ग्रहण कर लिया, उनकी आंखों से ओझल हो गया। वो A mountain, एक पहाड़, a cloud, एक बादल and Jesus in the cloud, और यीशु मसीह बादल के अंदर vanishing. गायब होते हुए। Now I know you heard this before, और मैं जानता हूं आपने इसको पहले सुना है, but hear it very carefully today, लेकिन आज बहुत ध्यानपूर्वक इसको सुनिएगा, because we are going to see the progression of that. क्योंकि हम इसके बढ़त को आज देखेंगे। A cloud received him out of their sight. एक बादल ने उसको ग्रहण कर लिया अपने अंदर, उनकी आंखों से ओझल हो गया वो। And while they looked steadfastly towards heaven, और जबकि वो टकटकी लगाकर स्वर्ग की ओर देख रहे थे, as he went up, जैसे कि वो ऊपर गया, behold, two men stood by them देखो दो मनुष्य उसके पास आगे खड़े हो गए, in white apparel. सफेद वस्त्रों में। Now, who are these two men? ये दो पुरुष कौन हैं? Moses and Elijah, मूसा और एलिया, preaching to the Jews यहूदियों को प्रचार करते हुए after Jesus was raptured. यीशु मसीह के रैप्चर के बाद। I hope you can see it. मैं आशा करता हूं इसको देख पा रहे हो। Amen, amen, amen. Amen. Can't you see it? क्या आप इसको देख नहीं सकते? Amen, amen. When Jesus was raptured, जब यीशु मसीह का रैप्चर हो गया, two men appeared in Jerusalem दो पुरुष प्रकट हुए यरूशलेम में, to preach to those Jews. ताकि उन यहूदियों के सामने प्रचार करें। Amen.
Isn't that the same thing going to happen today? क्या वही चीज आज नहीं होगी? Amen. That means इसका अर्थ यह है, I'm very much interested in our cloud. इसका मतलब मेरी बहुत ज्यादा दिलचस्पी इस बादल में है. One particular cloud, एक खास बादल, a cloud, एक बादल where the whole body of Jesus vanished. जहां पर यीशु मसीह की पूरी देह गायब हो गई. Amen. Now, how many remembers the Philadelphia experiment? आप कितनों को याद है फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट? Sit down, please. कृपया बैठ जाइए. What happened? क्या हुआ? An experiment which is kept a top secret. एक ऐसा प्रयोग, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसको कि बहुत ज्यादा एक टॉप सीक्रेट रखा गया And not opened before the whole world. और पूरे संसार के सामने वो खुले रूप में नहीं लाया गया. A big ship, एक बड़ा जहाज पानी का, which was called the naval ship Eldridge. और उस वो नौसेना का वो जहाज था जिसको एल्ड्रिच कहा गया. And in a split second, और क्षण भर में by the experiments of Nikola Tesla, निकोलस टेस्ला का जो प्रयोग था, by creating a magnetic field around the ship, ताकि उस पानी के जहाज के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बना दिया जाए. because of that experiment, उस प्रयोग की वजह से suddenly a green smoke came, अचानक से एक हरा धुआं आया and the ship disappeared in smoke. और उस धुएं में वो जो जहाज है पानी का वो गायब हो गया. And appeared 300 kilometers further down, और आगे 300 किलोमीटर के बाद वहां पे प्रकट हुआ, then disappeared there और फिर वहां गायब हो गया and appeared here और यहां पर प्रकट हुआ. because of very strong magnetic fields. बहुत ज्यादा तीव्र चुंबकीय क्षेत्र की वजह से. You remember that experiment? आप उस प्रयोग को जानते हैं. Now people say it's a urban legend. लोग बात कहते हैं ये अर्बन लेजेंड है, People say it's just a story. लोग कहते हैं केवल कहानी है, But actually it's not just a story. लेकिन केवल मात्र कहानी नहीं है. Something did really happen, कुछ चीज वास्तविक रूप में हुई which was something which the world doesn't know. जो कि संसार वास्तविक रूप में जानता नहीं. The main reason for that experiment was to vanish the ships before the German U-boat submarines. और मुख्य कारण उस प्रयोग का यह था कि जर्मन के जो सबमरीन्स हैं, यू बोट्स हैं, उनके सामने से जहाज को गायब कर देना, So that they cannot shoot their torpedoes. ताकि वो अपने टॉर्पेडो से उस पे गोलाबारी ना कर पाएं. The ship just vanished, जहाज गायब हो गया, appeared, प्रकट हुआ, disappeared. फिर गायब हुआ. And whenever that appearing and disappearing part came, और जब कभी ये छुपने वाला और प्रकटीकरण वाला स्थान आया, there was a cloud. वहां पर एक बादल आ गया था. And that cloud made the ship disappear. और बादल ने विवश किया वो जहाज को कि वो गायब हो जाए. It is that same cloud यही वो बादल है which caused our Lord Jesus to disappear. जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को विवश किया कि वो गायब हो जाए. Turn with me to Thessalonians. मेरे साथ निकालें थिस्सलुनीके की पत्री, 1 Thessalonians chapter 4. पहला थिस्सलुनीकियों चौथा अध्याय. You are very well aware of that. आप भली भांति इसको जानते हैं. I am reading from verse 16. मैं 16वीं आयत से पढ़ रहा हूं. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, कि प्रभु आप इस स्वर्ग से उतरेगा एक ललकार के साथ, with the voice of the archangel, प्रधान दूत के शब्द के साथ, and with the trump of God, और खुदा की तुरही फूंकी जाएगी. and the dead in Christ shall rise first. और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे. Then we which are alive and remain तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे shall be caught up together with them उनके साथ उठा लिए जाएंगे एक साथ in the clouds बादलों में, to meet the Lord in the air. ताकि प्रभु से हवा में इस्तकबाल करें. In other words, gravity will lose hold of us also. इसका मतलब दूसरे अर्थों में गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमारे ऊपर भी अपना प्रभाव नहीं डाल पाएगी. And when we meet Jesus in the clouds. और जब हम यीशु मसीह से मुलाकात करेंगे उससे हम बादलों में मुलाकात करेंगे. Now people think it's these clouds we are seeing these days. अब लोग बात सोचते हैं ये है जो बादल जो हमको आज इन दिनों में दिखते हैं. It is these clouds in which we will be caught up. ये है वो बादल जिसमें कि हम गायब उठा लिए जाएंगे. Absolutely wrong. बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत. These are not the clouds ये वो बादल नहीं है in which the bride will be taken up. जिसमें दुल्हन उठा ली जाएगी.
That cloud in which the bride is taken up is different. वो बादल जिसमें दुल्हन उठाई जाएगी वो फर्क बादल है. That cloud is basically an atmosphere. ये बादल जो है ये अगर आप सही रूप में देखें तो ये एक वातावरण है, एक एटमॉस्फेयर है. It's a shell ये एक खोल है in which somebody disappears. जिसके अंदर कोई गायब हो जाता है. Amen. God bless you, my brother. For example, उदाहरण के तौर पे if somebody disappears from here right now इसी समय अगर यहां से कोई गायब हो जाए and somebody wants to see it, और कोई उसको देखना चाहे, there would be a cloud here यहां पर एक बादल होगा and that person would disappear. और वो मनुष्य यहां से गायब हो जाएगा When he enters that dimension. जब वो उस वाले अय्याम में प्रवेश करे. Now what are these clouds? अब ये बादल, Theophany cloud. ये बादल जो है ये थियोफनी का बादल है. This is not a water cloud. ये पानी वाला बादल नहीं है. This is made of 7 angels. ये 7 दूतों के द्वारा बनाया गया है. This is Christ the Logos. ये मसीह जो कि लोगोस है वो है. Deity in his theophany. खुदाइयत अपनी थियोफनी में. If it's a theophany cloud, अगर ये थियोफनी वाला बादल है, if I break it into pieces, अगर मैं इसको टुकड़ों में बांटूं, which that breaking you can see here. जो टूटना आप यहाँ देख सकते हैं. Can you see it here? क्या आप इसको यहाँ देख सकते हैं? God bless you, brother. Yes. The anointing oil. अभिषेक का तेल. Now here is a little deeper revelation. Try to catch यहाँ it. पर एक गहन मुकाशवा है, इसको पकड़ने की कोशिश करिए. The anointing oil अभिषेक का तेल which came over Aaron the high priest, जो कि हारून महायाजक के ऊपर आया, which flowed on his beard जो कि उसकी दाढ़ी में बहा and flowed to the ends of his vesture. और उसके वस्त्र के छोरों तक के गया. That same anointing that was on the head वही अभिषेक जो कि सर के ऊपर था, covered the whole body. पूरी देह को उसने ढांक लिया. If you see the cloud, अगर आप बादल को देखें, it's not a one single cloud. ये एक अकेला बादल नहीं है, It is made of pieces. ये टुकड़ों से बना हुआ है. Can you see that? क्या आप इसको देख सकते हैं? Amen. And each small piece और हर एक छोटा टुकड़ा is your theophany. वो आपकी थियोफनी है. What are the clouds? बादलों के विषय में जो लिखा वो है क्या? They are your theophanies. वो आपके थियोफनी है. We'll be caught up in the clouds. हम बादलों में उठा लिए जाएंगे. Those clouds are our theophanies. ये जो बादलों जिसके विषय में लिखा है ये हमारी थियोफनी है. And when we are caught up by our theophanies, और जब अपनी थियोफनी देह में उठा लिए जाएंगे, when we come together, जब हम इकट्ठा होंगे एक साथ, we'll make one cloud, हम एक बड़ा बादल बनाएंगे which is Jesus Christ जो कि प्रभु यीशु मसीह है himself. स्वयं. Amen. That means इसका अर्थ ये है, when Jesus came, जब यीशु मसीह आए, our theophanies came. हमारी थियोफनी आई. Mystic lights here. भेदपूर्ण रोशनियां यहाँ पर. Remember the message? क्या याद है संदेश? Then he divides. तब वो विभाजित होता है. The bride is identified. दुल्हन पहचान मिलती है उसको. And each theophany wears the natural to become glorified. और हर एक थियोफनी जो है उस प्राकृतिक देह को लेती है, उसको पहनती है ताकि वो महिमा युक्त बन सके. Then they all go up. तब वो एक साथ उठाए जाते हैं ऊपर. And when they all go up to heaven, और जब ये सब के सब स्वर्ग में जाते हैं, they all unite वो सब एक हो जाते हैं to make the face of Christ. ताकि मसीह के चेहरे को बनाएं. Make Jesus again. यीशु मसीह को दोबारा बनाएं. Cloud coming. बादल का आना. What happened on the day of Pentecost? ईद पेंतेकोस्त के दिन क्या हुआ? One pillar of fire came, एक आग का सतून आया, divided. विभाजित हुआ. But now in this age, लेकिन अब इस युग में what is happening? क्या हो रहा है? One cloud came, एक बादल आया, divided. विभाजित हो गया. But at the time of rapture, लेकिन रैप्चर के समय में again unite. फिर से इकट्ठा हो जाएगा, एक हो जाएगा. That's what is said in Ephesians. यही कहा गया एफएसओ में, All that is in heaven जो कुछ स्वर्ग में है and on earth, और पृथ्वी पर, gather in one. वो एक में इकट्ठा किए जाते हैं. And that is Christ और वो Jesus. मसीह यीशु है. Oh, it's so rich. ओ बहुत ज्यादा गहन है ये. Amen. आमीन. Hallelujah. हालेलुया. Is your cloud with you right now? क्या आपका बादल इसी समय आपके पास है? Remember what Branham said? याद है भाई ब्रैनम ने कहा, Before I went on the other side. इससे पहले कि मैं पर्दे के पार जाऊं, जल्दी आराम से बोल दो, तुम आराम से बोलो. मैं तेज बोलता हूं, तुम लेकिन आराम से बोलो. इससे पहले कि मैं पर्दे के पार जाऊं, I thought मैंने सोचा when I go there, जब मैं वहां जाऊंगा, Brother Neville would be a cloud. भाई ब्रैनम ये सोचते थे कि भाई
नेवल जो है वो बादल होंगे वहां पे, But when he went on the other side, लेकिन जब वो पर्दे के पार गए he didn't see a cloud. वहां पर उन्होंने एक बादल नहीं देखा, He saw a theophany body. उन्होंने थियोफनी दे देखी। So what were the clouds? सो बादल क्या थे? It was your theophany. वो आपकी थियोफनी थी। Now in this case, अब इस केस में Jesus already had got his theophany. यीशु मसीह को पहले से उनकी थियोफनी मिल चुकी थी। He's in his glorified body actually. वास्तविक रूप में तो वो अपनी महिमा युक्त देह में है When he's going up, जब वो ऊपर उठाए जा रहे हैं, and when he goes up to a limit, और जब वो एक स्तर तक के ऊपर उठाए जाते हैं, there's a bright cloud एक उजला बादल आता है and he vanishes. और वो गायब हो जाते हैं। He's disappearing in a cloud. वो एक बादल में गायब हो जाते हैं। Keep that in mind. इस बात को अपने मन में रखिएगा। In the same way, उसी रीति से the bride of Jesus Christ today यीशु मसीह की दुल्हन आज will vanish in this cloud. वो इस बादल में गायब हो जाएगी। Isn't it strange? क्या ये विचित्र बात नहीं है? Every Sunday, every meeting we hang it, हर सभा में, हर मीटिंग में, हर संडे हम इसको यहाँ पर लगाते हैं, टांगते हैं, not knowing ना जानते हुए one of these days इन्हीं किन्हीं दिनों में we'll vanish in this cloud. हम इस बादल में गायब हो जाएंगे। It's something calling us एक ऐसी चीज है जो हमें बुला रही है, हमें पुकार रही है, from time to eternity. समय से अनंतता में। Inside the cloud बादल के अंदर is eternity. अनंतता है, Outside the cloud बादल के बाहर is time. समय है, And we are called from time to eternity. और हमें समय से अनंतता के अंदर बुलाया जा रहा है। Can you understand that? क्या इतना समझ पा रहे हैं आप? Can you catch the revelation? क्या मुकाशफे को पकड़ पा रहे हैं आप? Sit down, please. कृपया बैठ जाइए। Now, here's a point which I want to bring out to you tonight. अब यहाँ पर एक बात है जो मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूँ। Just 1 minute, please. एक मिनट। Try to catch it. पकड़ने की कोशिश करिए इसे। And while they looked steadfastly towards heaven, और जबकि वो टकटकी लगा करके ईश्वर की ओर देख रहे थे, as he went up, जैसे वो ऊपर गया, behold, 2 men stood by them देखो दो पुरुष उनके पास आगे खड़े हो गए, in white apparel. सफेद श्वेत वस्त्रों में। What are they saying? वो क्या कह रहे हैं? Which also said, जिन्होंने ये भी कहा, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? तुम जो गलील के पुरुषों हो, तुम यहाँ पर स्वर की ओर टकटकी लगा के क्यों देख रहे हो? This same Jesus, यही यीशु which is taken up from you जो कि तुम्हारे पास से उठा लिया गया into heaven, स्वर के ऊपर, shall so come इसी रीति से आएगा। in the rapture of Jesus. यीशु मसीह के रैप्चर में Was hidden the secret of his second coming. यीशु मसीह के रैप्चर में छुपा था उसकी दूसरी आमद का भेद। Oh, if somebody can see it. और अगर कोई इस बात को देख पाए, If you can catch the manner of his rapture, अगर आप उसके रैप्चर के रीति को समझ पाएं, it will be the manner of his coming. यही रीति होगी उसकी आमद की भी। Can I say something? क्या मैं कुछ कह सकता हूं? And the manner of his bride going. और उसकी दुल्हन के जाने की रीति भी। Amen. God bless you, my brother. Now try to catch it. अब इसको पकड़ने की कोशिश करिए। The same Jesus, यही यीशु which is taken up from you into heaven, जो कि तुम्हारे सामने से स्वर्ग में उठा लिया गया, shall so come in like manner वो उसी रीति से वो आएगा as ye have seen him go into heaven. जैसे तुमने उसको स्वर्ग में जाते देखा। Then returned they unto Jerusalem तब वो यरूशलेम में लौटे from the mount called Olivet. उस जैतून पर्वत से, जिसका नाम जैतून पर्वत था। Why I'm reading more is because this is a study meeting. मैं क्यों ज्यादा पढ़ रहा हूं? क्योंकि ये एक शिक्षा वाली सभा है। So you also can read in the Bibles and make a note. तो आप भी बाइबल में पढ़ करके इसका नोट बना सकते हैं। Then returned they unto Jerusalem फिर वो यरूशलेम में लौटे from the mount called Olivet, उस पहाड़ से जिसका नाम जैतून था, which is from Jerusalem a Sabbath day's journey. जो कि यरूशलेम से एक सबत के दिन की यात्रा की दूरी पे था। Can you understand it? क्या इसको समझ सकते हैं आप? Now I like to show you a sequence. मैं आपको यहाँ पर एक क्रम दिखाना चाहता हूँ। The manner of the rapture of Jesus. वो रीति जो कि यीशु मसीह के रैप्चर की रीति है। Turn with me to Matthew 21.
मेरे साथ निकाले मत्ती की इंजील उसका 21वां अध्याय। Where did the rapture take place? रैप्चर कहाँ घटा? On a mountain, एक पहाड़ के ऊपर, and the name is written there, और नाम वहां लिखा है the Mount of Olives. जैतून पर्वत। Mount of Olives is the place of his ascension. जैतून पर्वत उसके उठाए जाने वाला स्थान है। Now in the tribulation period, अब कष्ट काल के समय में where will he descend? वो कहाँ उतर के आएगा? On the Mount of Olives. जैतून पहाड़ के ऊपर। Zechariah chapter 14. जकरिया 14 अध्याय। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? Before we go there, let's turn to Matthew 21. इससे पहले कि हम वहां जाएं, ये निकालते हैं मत्ती की इंजील उसका 21वां अध्याय। And I am reading the triumphal entry of our Lord Jesus हमारे यीशु मसीह की जीत वाली यात्रा, when he entered Jerusalem. जब वो यरूशलेम में प्रवेश किए। And you can understand the types and shadows. और आप तस्वीरों को और छायाओं को देख सकते हैं। And when they drew nigh unto Jerusalem and were come to Bethphage unto the Mount of Olives, then sent Jesus 2 disciples. जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को ये कहकर भेजा, Go into the village. सामने के गांव में जाओ। And you know the story. और आप कहानी जानते हैं। He takes an ass वहां पे वो गधी का बच्चा लेते and हैं, he sits on it. उस पे बैठते हैं। All this was done to fulfill what the prophet said. ये सब कुछ पूर्तिकरण था जो नबी ने कहा था उसका। And he started descending on a white donkey on the Mount of Olives to enter Jerusalem. और जैतून पर्वत से उसने गधी के बच्चे पर बैठ करके नीचे उतरना शुरू किया ताकि यरूशलेम में प्रवेश करें। Turn with me to Zechariah मेरे साथ निकालिए जकरिया की इंजील, जकरिया की पुस्तक chapter 14. 14वां अध्याय, जकरिया 14। Zechariah sort of gives a geography. जकरिया जो है हमें भूगोलिक जो स्थान है वो बताता है। I'm reading from verse 4. मैं चौथी आयत से पढ़ रहा हूँ। Now this is during the tribulation period. अब ये कष्ट काल के समय की बातचीत है। Not rather tribulation, that is at the time of the 7th trumpet. 7वीं तुरही के समय वाला घटना है ये। The battle of Armageddon. आर्मगेदोन का युद्ध। And his feet shall stand in that day upon the Mount of Olives, which is before Jerusalem on the east. उस दिन वो जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। Amen. So here, this scripture gives us the geographical location of the Mount of Olives. So ये वाली जो आयत है ये हमें भूगोलिक स्थान बताती है जो कि जैतून पर्वत की है। That Mount of Olives was on the eastern side of Jerusalem. जो जैतून पर्वत था वो यरूशलेम के पूर्वी हिस्से में था। So Jesus was entering from the eastern side into Jerusalem. So यीशु मसीह प्रवेश कर रहे हैं पूरब की तरफ से यरूशलेम की ओर। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? Amen. God bless you, my brother. Now I want to show you something. मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। A very, very simple diagram. एक बहुत ही साधारण चित्र। If this is east, this would be west, this is north, then this would be south. अगर ये पूरब है वो पश्चिम है, वो उत्तर है, ये दक्षिण है। If say this circle is Jerusalem, मान लीजिए ये जो सर्कल है ये यरूशलेम है, then on the eastern side is the mountain, तो पूरब की दिशा में आप पाएंगे कि ये पहाड़ है, Mount of Olives. जैतून पर्वत। And Jesus Christ our Lord और यीशु मसीह हमारे प्रभु is descending from that mountain, उस पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं enter Jerusalem. ताकि यरूशलेम में प्रवेश करें। And when he enters Jerusalem, और जब वो यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, that is the Palm Sunday, और ये है खजूर वाला इतवार, spends a week here. यहाँ पे एक सप्ताह बिताते हैं। Here comes the Good Friday. यहाँ आता है गुड फ्राइडे, Then comes the resurrection. फिर आता है पुनरुत्थान, We also call it Easter. इसको हम ईस्टर भी कहते हैं। And after resurrecting, और पुनरुत्थान होने के बाद 40 days, 40 दिन, and after 40 days, और 40 दिन के बाद he's back on the same mountain. वो वापस आ जाते हैं उसी पहाड़ के ऊपर। He is completing a ride. वो एक सवारी को पूरा कर रहे हैं। He's completing a circuit. वो एक सर्किट को पूरा कर रहे हैं। It begins
on the Mount of Olives, चालू होता है जैतून पर्वत से, and at the time of the rapture, और रैप्चर के समय it ends on the Mount of Olives. जैतून पर्वत पे ही समाप्ति होती है। Now keep that in mind. इस बात को अपने मन में रखिएगा। Well, I'll be bringing to you the quotes from the message, Attraction on the Mountain. मैं आपके सामने कोट्स लेके आऊंगा पहाड़ पे क्या आकर्षण वाले संदेश Now से। forget east, west, north and south, आप पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण को भूल जाइए, but just try to see the major thing which the prophet tried to bring. मुख्य बात को देखने की कोशिश करिए जो नबी लेके आए। When he took the scripture, जब उन्होंने शायद को लिया, Matthew 21, मत्ती 21, what is the attraction on the mountain? पहाड़ पे क्या आकर्षण है? Which mountain? कौन सा पहाड़? Mount of Olives. जैतून पर्वत। What was happening? क्या हो रहा था? Jesus was fulfilling a prophecy यीशु मसीह एक नबूवत को पूरा कर रहे थे of his coming. उसकी आमद को लेकर के। Coming where? कहां पे आमद? Into Jerusalem. यरूशलेम में। And how was he coming? और कैसे वो आ रहे थे? He was riding a white donkey. वो एक सफेद गधे पे सवारी कर रहे थे। Now, Brother Branham, how do you know it was a white donkey? भाई ब्रैनम, आप कैसे जानते हैं वो सफेद गधा था? It could have been something else. कुछ और रंग का भी हो सकता था। How do you know the donkey was white? आप कैसे जानते हैं गधा बहुत सफेद था? Oh, yes, it was. हाँ वो था, Because that white donkey today was the white man, Brother Branham. क्योंकि वो सफेद गधा आज भाई ब्रैनम था। Are you listening? क्या समझ रहे हैं आप? सुन रहे हैं? Who was loosed from the denominations? जो कि संस्थागत गिरजों से खोल दिया गया। Brother Branham was undenominational. भाई ब्रैनम जो थे संस्थागत नहीं थे। Can you say amen? क्या आमीन कह सकते हैं? Amen. Brother Branham takes that event, भाई ब्रैनम उस घटना को लेते हैं and Jesus riding on that white donkey, और यीशु मसीह उस सफेद गधे पे सवारी करते हैं, entering into Jerusalem, यरूशलेम में प्रवेश करते हैं and takes that event और उस घटना को लेते हैं and ties it और उसको जोड़ते हैं, मिलाते हैं in this age इस युग में to a sunset mountain एक सनसेट पहाड़ पे where Jesus descended जहाँ यीशु मसीह नीचे उतर के आए and rode on a white prophet और एक सफेद नबी के ऊपर उसने सवारी की and preached the 7 seals, और 7 मोहरों का प्रचार किया and doing that और इसको करके he entered New Jerusalem. वो नए यरूशलेम में प्रवेश कर गए In this age, इस युग में। Amen. if you read the message carefully, अगर आप संदेश को ध्यानपूर्वक पढ़े, he's tying Matthew 21 to this day event. वो मत्ती किसको जोड़ रहे हैं? आज के दिन की घटना के साथ। Today, आज the Mount of Olives जैतून पर्वत is the Mount Sunset वो है सनसेट पहाड़ where Jesus descended जहाँ यीशु मसीह नीचे उतर के आए and entered New Jerusalem. और नए यरूशलेम में प्रवेश कर गए। Amen, amen. But when the time of rapture comes, लेकिन जब रैप्चर का समय आएगा, he will return back to the same mountain. वो वापस लौट जाएंगे उसी पहाड़ के ऊपर। Hey, now this is something deep. अब ये कुछ गहरी बात है। He starts on that mountain वो उस पहाड़ पे शुरुआत करते हैं and he ends up the journey on that mountain. और यात्रा का समापन भी उसी पहाड़ पे करते हैं And from that mountain he was taken up. और उस पहाड़ से वो ऊपर उठा लिए गए। Now, brother and sister, अब मेरे भाई मेरी बहन, here comes a real message. यहाँ पर आता है वास्तविक संदेश। When he descended on that mountain, जब वो उस पहाड़ पर उतर के आए, his disciples were with him. उसके चेले उसके साथ थे And when he was raptured, और जब उनका रैप्चर हुआ, his disciples were again with him. उसके चेले दोबारा उसके साथ थे। But we were not there. लेकिन हम तो वहां थे नहीं। We were not there on Sunset Mountain. हम सनसेट पहाड़ पे तो नहीं थे, Or we were not there. या आप थे नहीं वहां पे? We were there, brother. You and I were a part of that cloud. आप और मैं उस बादल का हिस्सा थे। In preview, पूर्व छाया में when the cloud was made on the earth, जब बादल पृथ्वी पे बनाया and when गया the cloud went up, और जब बादल ऊपर हवा में चला गया, potentially संभावित रूप से the bride was raptured. दुल्हन का रैप्चर हो गया। God bless you, my brother. Now catch the mystery. अब भेद को पकड़िए। What happened there क्या हुआ वहां पे? जो कुछ वहां हुआ, जो कुछ वहां हुआ is now to be identified in a body. अब जरूरी है कि वो एक देह में उसको पहचान मिले।
That seventh seal which happened on that mountain has to identify with some individuals. वो सातवीं मोहर जरूरी है कि वो यहां पर जो उस पहाड़ पे हुआ। आप सही ट्रांसलेट कर नहीं पा रहे। That seventh seal, वो सातवीं मोहर, let me repeat it. उसको दोहराता हूं। Stunted translation होगा तो stunted ही लोग समझेंगे। That seventh seal, वो सातवीं मोहर which happened on that mountain, जो कि उस पहाड़ पे घटा, was waiting वो इंतजार कर रहा था to be identified ताकि उसको वो पहचाना जाए in a body of believers. विश्वासियों की देह में। Now, अब it happened in the word form. वचन के रूप में वो वहां पे घटा, Word form. वचन के रूप में, But it had to happen in the flesh form. लेकिन जरूरी था कि वो देह रूप में घट जाए। Amen. Your and my representative आपका मेरा प्रतिनिधित्व was Brother Branham. वो भाई ब्रैनम थे। And what happened to Brother Branham? और जो भाई ब्रैनम के साथ हुआ, मैं कह रहा हूं क्या हुआ, आप कह रहे हो वो हुआ। भाई ब्रैनम के साथ क्या हुआ? He was picked up. वो उठा लिए गए। Amen. He was picked up in the cloud. वो बादल में उठा लिए गए। What will happen in the rapture? रैप्चर में क्या होगा? You and I will be picked up. आप और मैं उठा लिए जाएंगे। Amen. But it had to wait. लेकिन इसको इंतजार करना था। It had to wait for a cycle to happen. एक चक्र की पूर्तिकरण के लिए। It started on a mountain. ये चालू हुआ एक पहाड़ से। But that mountain has to be identified with every believer. लेकिन उस पहाड़ को उसकी पहचान होना चाहिए हर एक विश्वासी में। Every believer has to climb that mountain. हर एक विश्वासी को उस पहाड़ पे चढ़ना चाहिए। Because when every believer has climbed that mountain, जब हर एक विश्वासी उस पहाड़ पे चढ़ जाएगा, all the men of Galilee, सारे गलीली पुरुष, the Galilee is a portion. गलीली एक स्थान है, एक हिस्सा है। It's a special place. एक खास स्थान है गलील। Galilee of the Gentiles. अन्य जातियों में गलील। There's a bride here, यहाँ पर एक दुल्हन है, which is Galilee, जो कि गलील है, which has to gather on that mountain. जिसको कि उस पहाड़ पे इकट्ठा होना है। When it gathers on that mountain, जब उस पहाड़ पे वो इकट्ठा होगी, इसका मतलब ये नहीं कि एरिज़ोना जाना पड़ेगा. That mountain has come here. वो पहाड़ यहाँ पर आ गया है। Because क्योंकि the same place from where he descended on the white donkey, क्योंकि वही स्थान जहां से वो उस पहाड़ से उतर के आया सफेद गधे के ऊपर से, is the same place वही स्थान है where he is raptured. जहां से उसका रैप्चर होता है। The place of the coming was the place of the going. आमद का स्थान ही उठाए जाने का स्थान है। It started on Mount of Olives ये चालू हुआ जैतून पर्वत पे, and it ends on the Mount of Olives. और जैतून पर्वत पे इसकी समापन होता है। It starts on Sunset Mountain चालू होता है सनसेट पहाड़ पे and it ends on the Sunset Mountain. और खत्म होता है सनसेट पहाड़ पे। Something special about that mountain. कुछ खास उस पहाड़ के विषय में। That means इसका अर्थ ये है, those experiences वो अनुभव which happened with the prophet जो नबी के साथ हुए on that mountain उस पहाड़ के ऊपर, has to literally come to every believer. वास्तविक तौर पे हर एक विश्वासी के पास वो सारे अनुभव आएंगे। And every candidate of the rapture has to be identified with those events. और हर एक जो सदस्य है रैप्चर का, वो जरूरी है कि उसको पहचान मिले उन घटनाओं के साथ। The amnesia leaves. जो आत्मिक भुलक्कड़पन है वो चला जाता है। Then I was with the prophet when the sword came. और मैं नबी के साथ था जब वो तलवार आई। I was with the prophet when the squirrel died. मैं नबी के साथ था जब गिलहरी मरी। I was with the prophet when the seventh dove came. मैं नबी के साथ था जब सातवीं फाख्ता आई। I was with the prophet when he saw the white eagle. मैं नबी के साथ था जब उसने सफेद उकाब को देखा। I was with the prophet in Sabino मैं Canyon. नबी के साथ सबीनो कैनियन में था। I was with the prophet on Sunset Mountain. मैं सनसेट पहाड़ पर नबी के साथ था। I was there मैं वहां था and I'm returning there. और मैं वापस वहां लौट रहा हूं। When I return there, जब मैं वहां लौटूं, seals मोहरे started from that mountain मोहरे चालू हुई उस पहाड़ से, and has to return back there. और जरूरी है कि वापस वहां लौट जाएं। And when they return back there, और जब वो वापस वहां लौट जाती the है, rapture will come. रैप्चर आ जाएगा। Amen. Amen. But I want to show you something here. लेकिन मैं आपको यहाँ पर कुछ दिखाना चाहता If हूँ। you're really excited, अगर आप वास्तविक रूप में उत्तेजित हैं, see the sequence carefully. ध्यान से क्रम को देखें। Matthew 21, he descends on a white donkey. मत्ती 21 में वो पहाड़ से नीचे उतर के आते हैं।
on a white एक donkey. सफेद गधे के ऊपर. In this age, इस युग में the white cloud सफेद बादल and white brother Branham, और सफेद भाई ब्रैनम on which he descends. जिस पे वो उतर के आते हैं, He sits in him वो उसके अंदर बैठते हैं and enters Jerusalem. और यरूशलेम में प्रवेश कर जाते हैं. And after entering Jerusalem, और यरूशलेम में प्रवेश करने के बाद in chapter 24, 24वें अध्याय में he opens the seals. वो मोहरों को खोलते हैं. गॉड ब्लेस यू माय ब्रदर. After opening the seals, मोहरों को खोलने के बाद he goes to a Good Friday. वो एक गुड फ्राइडे में जाते हैं. 1963 1963 was the Good Friday year. वो था गुड फ्राइडे वाला वर्ष. He died. वो मर गया. The word was crucified. वचन को क्रूस पे चढ़ाया गया. But on the third day, लेकिन तीसरे दिन 63, 64, 65, 63, 64, 65 that third year, वो तीसरा साल, third day, तीसरा दिन he started preaching. उन्होंने प्रचार करना शुरू It is किया. the rising of the sun. ये सूर्योदय का समय है. It was the resurrection year. ये था पुनरुत्थान वाला साल. It is the rising of the sun. ये सूर्य का उदय का समय है. The true Easter seal. सच्ची ईस्टर वाली मोहर. Amen. He turned the picture उन्होंने तस्वीर को मोड़ा and he showed the face of Jesus और Christ. यीशु मसीह के चेहरे को दिखाया. But after resurrection, लेकिन पुनरुत्थान के बाद he spent 40 days on the earth. उन्होंने पृथ्वी पर 40 दिन बिताए. After 1965, 1965 के बाद Brother Branham went. भाई ब्रैनम चले गए. But Jesus has to spend some years on this earth. लेकिन जरूरी है कि यीशु मसीह कुछ सालों को बिताए इस पृथ्वी के ऊपर. And what happened during those 40 days? और उन 40 दिनों के समय में क्या हुआ? He appeared individually to those who would carry the ministry. व्यक्तिगत तौर पे उन पे प्रकट हुआ जो आगे सेवकाई को लेके जाएंगे. That was 40 days. ये था 40 दिन. Today it's more than, I would say 65, more than 53 years have happened. 53 वर्ष से ज्यादा बीत चुके हैं While Jesus is on earth. जबकि यीशु मसीह यहाँ पृथ्वी के ऊपर हैं. Amen. Now and then he appeared to them. वो उनको उनके सामने अब या तब. अब या तब वो उनके सामने प्रकट होता रहा. He appeared before 11. 11 के सामने प्रकट हुआ. He appeared to Cleopas. क्लियोपास के सामने प्रकट हुआ. He appeared at Tiberias. तिबरियास झील के सामने वो प्रकट हुआ. He appears, he disappears, appears, वो disappears. प्रकट होता है, वो गायब हो जाता है, प्रकट होता है, गायब हो जाता है. Appeared in Vijayawada, विजयवाड़ा में प्रकट हुआ, disappeared. गायब हो गया. Amen. Appeared in Delhi, दिल्ली में प्रकट हुआ, disappeared. गायब हो गया. Appearing, disappearing, appearing, disappearing. प्रकट होना, गायब होना, प्रकट होना, गायब होना. This bride shall not die. ये दुल्हन नहीं मरेगी, She's going in the rapture. वो रैप्चर में जा रही है. हालेलुया. 40 days. 40 दिन. But now, लेकिन अब after the circuit is finished, जबकि ये चक्र पूरा हो जाएगा, because when Brother Branham preached on the wings of a snow white dove, जबकि भाई ब्रैनम ने प्रचार किया सफेद पिंडुकी के पंखों के ऊपर, he referred to his old rifle उन्होंने अपनी पुरानी राइफल को संकेत देते हुए कहा and he called it Blondie. और उसको कहा ब्लॉन्डी. And then he said, और तब उन्होंने कहा in the olden times, पुराने समय में, there was somebody called a circuit rider preacher. पुराने जमाने में किसी को कहते थे एक सर्किट राइटर प्रीचर जो चक्र लेकर के प्रचार करता था, With a rifle on his shoulder and a Bible in his hand. और राइफल उसके कंधे पे होती थी, बाइबल उसके हाथ में होती थी. Are you listening? क्या सुन रहे हैं आप? Brother Branham was that circuit preacher. भाई ब्रैनम वो चक्रीय प्रचारक थे. He had Blondie. उनके पास ब्लॉन्डी थी, He had his Bible. उनके पास उनकी बाइबल थी. He started his circuit उन्होंने अपने चक्र चालू किया in Arizona, अरिजोना में ends up in Arizona. और समाप्त करा अरिजोना में. He'll end up in Arizona. समाप्त होगा एरिजोना में. मुझे मालूम है आप मुझे कहीं समझ में नहीं आया. He'll end up in Arizona. उसका समापन होगा एरिजोना में. Ends up back there. वापस वहीं पर समाप्त होता है. That means इसका अर्थ ये है, has to be some people from the bride जरूरी है कुछ लोग हों जो दुल्हन में होंगे, who return back to that mountain जो वापस उस पहाड़ पे लौटेंगे and when they return back to those same experiences. और उन्हीं अनुभवों पे वो लौटेंगे. When they return back जब वो लौटेंगे carrying the gospel of seals, मोहरों के सुसमाचार को ले जाते हुए, that is the time ये वो समय होगा when the rapture would come. जब रैप्चर आएगा And two men will appear before Israel, और दो पुरुष प्रकट होंगे इजराइल के सामने, preaching them the gospel. उनके सामने सुसमाचार का प्रचार करेंगे.
Are you listening? क्या सुन रहे हैं आप? Started from olives चालू हुआ जैतून से and ends upon olives. और जैतून पर्वत पे ही समापन होता है। Started on sunset सनसेट पहाड़ पे चालू हुआ and end upon sunset. और सनसेट पहाड़ पे ही उसका समापन होगा। Hallelujah. हालेलुया। Now this is a secret. अब ये एक भेद है। I don't know why I'm saying it, मैं नहीं जानता मैं क्यों कह रहा हूं, but I'm still saying it. लेकिन फिर भी मैं इसको कह रहा हूं। Why did he take pains to take photographs of that area? क्यों उसने दर्द लिया कि उस जगह की तस्वीरों को बोले? Why did he sit 6 hours with Brother Peregrine in Ramada Inn? भाई पेरिग्रीन के साथ 6 घंटे वो क्यों रमाडा इन में बैठे? Why is he discussing at length those events? विस्तारों में क्यों वो डिस्कस कर रहे हैं उन घटनाओं को? Because someday क्योंकि किसी दिन somebody has to visit there किसी को वहां जाना है and finish the tour. और उस यात्रा को समाप्त करना है। And when he finishes, और जब वो समाप्त करेगा then the rapture would come. तब रैप्चर आ जाएगा। Many people have visited. कई लोग उस स्थान पे गए हैं, Many people have come and gone. कई लोग आए हैं और चले गए, But there has to be someone. लेकिन जरूरी है कोई हो खास। There has to be some people कुछ लोग होना अवश्य है who go there, the last ones. जो कि अंत में जो कि वहां जाएंगे, And when they visit that, और जब वो स्थान में जाएंगे their representation finishes the tour. उनका जो प्रतिनिधित्व है वो उस टूर को, उस यात्रा को समाप्त कर देगा। When Jesus is back on the mount जब यीशु मसीह वापस पहाड़ पे आ जाएंगे and it's time for the bride to go home. और ये समय होगा दुल्हन का घर जाने का। Oh my. ओ माय, It has a spiritual implication. इसका एक आत्मिक लागूकरण है। It may have a physical implication. हो सकता है कि इसका एक भौतिकी प्रयोग हो। And I really thank God. मैं वास्तविक रूप में खुदा का धन्यवाद करता The हूँ। time has come. समय आ चुका है, East and West are meeting. पूरब और पश्चिम मिल रहे हैं And it's time that when they meet, और ये समय है जबकि वो मुलाकात करें। the gospel turns back to the Jews. सुसमाचार वापस मुड़ जाए यहूदियों की 3 ओर। minutes to midnight. मध्य रात्रि से 3 मिनट It's time for the 2 men to appear to Israel समय आ गया कि 2 पुरुष प्रकट हों इजराइल के सामने and a bride to disappear in a cloud. और एक दुल्हन जो कि बादल में गायब हो जाए। That cloud which will make you disappear has already come. वो बादल जो कि आपको गायब करेगा वो पहले से आ चुका है। ये रहा आपका chariot. Amen. God bless you, brother. जिसमें आप जा रहे हैं। Hallelujah. Amen. Every Sunday you see it. हर संडे आप देखते हैं इसको, In your houses you see it. अपने घरों में इसको देखते हो। Now when you see it, remember, अब जब आप इसको देखें तो याद रखिएगा this has come ये आ चुका है to pick you out. ताकि आपको यहाँ से उठा के ले जाए बाहर। This is the cloud chariot. ये है बादल रूपी रथ। Is cloud a chariot? क्या बादल एक रथ है? What does Psalm say? ज़बूर में क्या लिखा है? In Psalm it says, ज़बूर में लिखा है who clothes himself with lightning जो कि अपने आप को अपना पहरावा बनाता है बिजलियों के साथ and rides on the chariots of clouds. और बादल के रथों पे सवार होके आता है। So cloud is a chariot. सो बादल रथ है। This is your chariot. ये आपका रथ है। Elijah, this is your chariot एलाइजा, एलिया, ये तुम्हारा रथ है in which you are going home. जिसमें तुम वापस घर जा रहे हो। देखते रहो, देखते देखते रहो, रहो। देखते रहो, देखते रहो। Amen. एक दिन यही होगा, Amen. आप गायब हो जाओगे। Amen. Amen. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Appeared on May 17 in Life magazine. मई 17 लाइफ मैगजीन में वो प्रकट हुआ। Photographed on 28 February. 28 फरवरी को उसकी तस्वीर ली गई। Nobody in the world knows. संसार में कोई नहीं जानता। एक दिन आपको हंसी आएगी कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ रहा। जिस चीज में मुझे गायब होना था रैप्चर में, हर संडे वो आंखों के सामने दिखती थी, मेरे घर में पड़ी थी, मैं हर दिन उसे देखता था, लेकिन कभी दिमाग में यह स्ट्राइक नहीं किया मैं इसी में गायब होऊंगा। बट दिस इज द थिंग इन विच यू विल डिसअपियर। लेकिन यही वो चीज है जिसमें कि आप गायब हो जाओगे। One of these mornings, इन्हीं सुबहों में this cloud will come out ये बादल बाहर निकल के आएगा and suck you, और आपको अंदर चूस लेगा and you're gone. और आप गायब हो जाओगे।
Oh, brother, the hour has come ओ मेरे भाई, इस घड़ी आ पहुंची है for the Son of Man to be glorified. कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। It started on the Mount of Olives चालू हुआ जैतून पर्वत पे and it finishes on the Mount of Olives. और जैतून पर्वत पे ही वो समाप्त होता है। It started on sunset. सनसेट पर चालू हुआ It had to end up on sunset. और जरूर है कि उसका समापन भी सनसेट पे ही हो। Ah, Amen. that is something. ये कुछ चीज है, I don't want to touch it now, मैं इसको अभी छूना नहीं चाहता, but I just want to keep it something up my sleeves. Amen. लेकिन मैं इसको रखना चाहता हूँ अपने पास ताकि मैं आपको बाद में इसको बताऊं, But may God give you grace to understand. ताकि खुदावंद आपको अनुग्रह दे ताकि इन चीजों को समझ पाए। Amen. आमीन। Back to Tucson. वापस ट्यूसन में, Back to sunset. वापस सनसेट पे, And then और तब beyond the sunset, सनसेट के परे beautiful morning. एक बहुत ही खूबसूरत सुबह, So it finishes on sunset. उसका समापन सनसेट पे होता है। Amen. आमीन। So God give us grace. तो काश खुदा हमें अनुग्रह दे। आइए दुआ करेंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं कि आज आपने फिर से अपना वचन दिया, जिसको हमने सुना, समझा, डाइजेस्ट किया। अगर कोई चीज़ है जो सिर के ऊपर से गई, खुदावन प्लीज़ रहम करें कि हमें से किसी के सिर पे से कोई चीज़ ना निकल जाए, वरन हमें से हर एक इन पे मेडिटेट करे, क्योंकि ये चीज़ें हमारे जीवनों में आज घट रही हैं। वो 7वीं मोहर जो सनसेट पहाड़ पे आई, प्रकाशित 10 सनसेट पहाड़ पे पूरा हुआ, आज इंतज़ार करता है जैसे आप 40 दिन पृथ्वी पे रहे ताकि उस पुनरुत्थान को हर एक तक पहुंचाएं। वो 7वीं मोहर हर एक इंडिविजुअल के पास पहुंच रही है जो उड़ने वाला कैंडिडेट है, क्योंकि उन 40 दिनों के अंदर मुझे मालूम है क्या हुआ प्रभु। वेव आफ्टर वेव हर युग के संत जी उठ रहे थे, क्योंकि कब्रें एक साथ खुल के ही काम खत्म नहीं हो गया। उन 40 दिनों में वेव आफ्टर वेव कब्रें खुल रही थीं और लोग निकल के आ रहे थे। एक मेथोडिस्ट कब्र खुली, एक बैप्टिस्ट कब्र खुली, एक पेंटिकॉस्टल कब्र खुली, हड्डियों से हड्डियां जुड़ी। ये तमाम चीज़ें हो रही थी इस पीरियड में, जो कि गैप है पुनरुत्थान के साल 1965 और रैप्चर के साल के बीच में। ओ खुदावन, आपका धन्यवाद हो कि आप इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं। हम अपने सैंडविच को आज रात प्राप्त कर लिए हैं, हमें इसे डाइजेस्ट करने का मौका दें। तमाम आए भाई बहनों को बड़ी बरकत और आशीष दें। आपका नाम मुबारक हो। वी आर वेरी एक्साइटेड लॉर्ड, क्योंकि आप कुछ चीज़ों को दिखा रहे हैं और खोल रहे हैं। गिव अस ग्रेस कि हम इनको संपूर्णतः समझ सकें। आने वाली लीडरशिप सेमिनार पे भी आपकी बड़ी बरकत और आशीष हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, ज़मीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आप हमें बख्श दें, जिस तरह आपको माफ़ करते हैं, आप हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बुराई से बचाएं। ये बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है, आमीन। आप क्या किसी आदमी के इन्फ्लुएंस में हैं? थैंक गॉड। क्या अंधापन है कुछ लोगों का, और जो लिखते हैं कि हम मनुष्य के इन्फ्लुएंस से निकल गए, नहीं जानते कि आज वो मनुष्य के इन्फ्लुएंस के ही कारण निकले। थैंक गॉड। खुदा हमें बचा के रखे। गॉड रियली ब्लेस यू। आप बहुत ही प्रेशियस लोग हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। गॉड रियली ब्लेस यू। आप लोग यहां से जा सकते हैं, और मैं तब तक जवान भाइयों की, सॉरी बहन तो है ही नहीं, उनकी अटेंडेंस ले रहा हूं।